We come to the closing session. और जैसे हम अंतिम सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, What the Bible says is the most important thing in the Christian life. और हम इस बात के विषय में सोचना चाहेंगे जिसे बाइबल सबसे महत्वपूर्ण चीज कहती मसीही जीवन के विषय में। You know, we look at many things, many different subjects, and they're all part of one big whole. और हम बहुत सारे विषय में देखते हो और यह सब एक बड़े सी चीज का हिस्सा है। There was a question earlier asked about what is the difference between being in Christ and walking with the Lord. और किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या अंतर होता है मसीह के साथ चलने में और No, these are all word pictures. यह सारे जो शाब्दिक With a चित्र हैं, scientific mind, we try to pigeonhole these things as if they are different things. They are not different things. और हम इनका चित्रण ऐसे करते हैं कि जैसे ये सारी चीजें अलग अलग हैं, परंतु ये अलग नहीं है। Look at them differently, but they're all part of one whole. और हम इन्हें अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन ये एक ही चीज का हिस्सा है। To be in Christ, मसीह में होना, for Christ to be in us, या मसीह का हमारे अंदर होना, to be a part of a body, या एक देह का हिस्सा or होना, part of a building. या किसी भवन का हिस्सा होना Christ is the foundation, जिसका नींव मसीह है, or part of a body where Christ is the head. या ऐसी देह का हिस्सा होना जिसका सिर मसीह है। In a building, the foundation doesn't control the bricks, but in a body, the head controls the fingers. एक इमारत में जो नींव है वह ईंटों को नियंत्रित नहीं करती है, परंतु शरीर में जो सिर है वह शरीर के बाकी अंगों को नियंत्रित करता है। And the members. So different illustrations, because the totality of the Christian life cannot be expressed with one illustration. और इसलिए बहुत सारे चित्रण होते हैं क्योंकि जो मसीहियत की संपूर्णता है वह केवल एक चित्रण या एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। And that's why the New Testament uses so many pictures. You're the salt and you're the light. और इसीलिए नए नियम बहुत सारे चित्रों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि वह कहता है कि तुम नमक हो और ज्योति हो। And we're in Christ. Christ is in us. और हम मसीह में हैं और मसीह हमारे भीतर है। And we have to walk with the Lord. And we have to walk like the Lord. And we have to run behind the Lord. और हमें मसीह के समान चलना है, मसीह के पीछे चलना और उसके पीछे दौड़ना है, Forerunner. क्योंकि वह हमारा आगे दौड़ने वाला है। And we have to look up to our Lord who is at the right hand of the Father. और हमें उस परमेश्वर को देखने जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है। If you think only one of these is true, we've got this pigeonhole type of mind. It is not like that. That's why the Bible says, Jesus said, I thank you, Father, that you have hidden these things from the clever and the intelligent who try to analyze everything scientifically. और इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता तेरा धन्यवाद हो कि तूने इन सारी चीजों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छुपा करके रखा है, जो इन सारी चीजों को वैज्ञानिक तौर पे जांच के और परख करके देखते हैं। And you reveal them to simple babes. You know, I find that when I go to the villages in India, they don't have these questions. और मैं देखता हूं कि इन सारी चीजों को परमेश्वर तूने बच्चों के ऊपर प्रदर्शित किया है, प्रकाशित किया। और जब मैं गांवों में जाता हूं भारत के, तो मैं पाता हूं कि वहां के लोगों को ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं। They don't have all this analysis because they don't have this scientific type of pigeonholing everything. और उनके पास ये सारी जो वैज्ञानिक जो एनालिसिस है वो नहीं होती है। But even for those who are scientifically minded, I mean, I would say it's something like this. और उन लोगों के लिए भी जो वैज्ञानिक तौर पे सोचते हैं ये इस प्रकार से है। Take a thing like sulfuric acid. और सल्फ्यूरिक एसिड को ले लीजिए। Sulfuric acid consists of 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur, और सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, 1 एटम सल्फर का 4 होता है, atoms of oxygen. और ऑक्सीजन के 4 एटम होते हैं। If I remember my chemistry right from about 50 years ago. और यदि मुझे 50 वर्ष पहले की केमिस्ट्री यदि सही से याद आ रही है तो ये ऐसा ही है। It's H2SO4. और वो होता है उसका फॉर्मूला H2SO4। Now you can study hydrogen, the qualities of hydrogen and the characteristics of it. You can study the qualities of sulfur. और आप चाहें तो अलग से हाइड्रोजन और उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, सल्फर और उसकी सारे विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, And the qualities of oxygen. और ऑक्सीजन की विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। You breathe oxygen, but you better not breathe sulfuric acid. और हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन को, परंतु हम सल्फ्यूरिक एसिड में श्वास नहीं लेते हैं, Even though it's 4 atoms of oxygen. यद्यपि उसमें ऑक्सीजन के 4 एटम क्यों नहीं पाए जाते हैं। See,
You can look at oxygen separately and sulfur separately and hydrogen separately, but that's not sulfuric acid. और आप चाहे तो ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, सल्फर को अलग अलग रीति से देख सकते हैं, परंतु वे अलग अलग सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। That's a simple example. और यह तो एक साधारण सा उदाहरण है। You look at sodium and you look at chlorine, and that's not salt. You put it together, you get salt. और आप सोडियम को अलग से देखिए, क्लोरीन को अलग से देखिए, परंतु वह नमक नहीं है जब तक कि आप उन्हें मिलाएंगे नहीं। So that's a little weak illustration और यह तो बहुत ही कमजोर सा उदाहरण था of how we look at many different things in the New Testament. कि कैसे हम नए नियम में बहुत सारे अलग अलग चीजों को देखते हैं। And when put together, that is true Christianity. और जब इन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो सच्ची मसीहत निकल करके बाहर आती है। And that's what it means to be a true disciple of Jesus Christ. और यही तो यीशु मसीह के सच्चे चेले होने का अर्थ होता है। But if you take one word picture, it may clash with another. परंतु यदि आप एक ही चित्र को ले लेंगे तो वह दूसरे चित्र के साथ टकरा जाएगा। Is Jesus a shepherd? Yeah, or is he an elder brother? I mean, the shepherd and sheep are two different kingdoms. Shepherd is a human being and a sheep is not a human being. But an elder brother and the younger brother, we are human beings. और यदि आप इसका चित्रण चरवाहे और भेड़ की तरफ में से करें, यीशु मसीह का चित्रण या बड़े भाई छोटे भाई के तौर पे करें, तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। So we mustn't make too much of one picture as if that is everything. और इसलिए हमें बहुत सारी चीजों को एक ही चित्र नहीं बनाना है। That's a little principle you must bear in mind. और ये छोटा सा सिद्धांत है जिसे आपको अपने मन में याद रखना है। Those who tend to analyze. और उन लोगों के लिए है जो हर चीजों का विश्लेषण करते हैं। It's very easy to, for our soul to develop and hinder our Christian life. और ये बहुत ही आसान होता है हमारे प्राण के लिए कि हमारे मसीही जीवन में अवरोध उत्पन्न करे। Adam went to the tree of knowledge and went astray. Knowledge always brings death. आदम जो था वह ज्ञान के वृक्ष के पास गया और वहां से वह भटक गया। ज्ञान हमेशा मृत्यु को लेकर के आता है। It's life, the tree of life that he should have gone to. God's word has not been given to us for analysis. परमेश्वर का वचन हमें उसका विश्लेषण करने के लिए नहीं दिया गया, परंतु जीवन के लिए दिया गया है। God's word has been given to us to teach us how to relate to God and how to relate to one another. परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया है कि हम जाने कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं और किस रीति से हम लोगों के साथ व्यवहार करें। So when somebody came to Jesus and asked him, what is the great commandment of the law? और जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उससे पूछता है कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, He said, उसने in कहा, Matthew 22, उसने मत्ती 22 अध्याय में इस रीति से कहा, that was a question that somebody asked him. और यह एक प्रश्न था जिसे किसी ने उससे पूछा था। And Jesus' reply was this, I think they had the idea, they were all legalists, and they thought the most important thing is keeping the Sabbath. और मुझे लगता है कि जिसने प्रश्न पूछा था वे सारे लोग जो थे वो परंपरावादी और रूढ़िवादी थे, और इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ी आज्ञा जो होगी वो सबत मानना है। But Jesus didn't even refer to the Sabbath. परंतु यीशु मसीह ने सबत का वर्णन भी नहीं किया। There can be sometimes people who are godly, who got a sort of a quirk, go off on a tangent on some particular doctrine, and that becomes like a bee in the bonnet. You know what a bee in the bonnet is? A bonnet is like a hat these women used to wear, and if you got a bee inside it, it's always buzzing, 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 buzzing. You can't hear anything else. और ये ठीक वैसा ही है जैसे ये लोग क्या करते हैं, एक छोटे से चीज को लेकर के उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक टोपी जो हम पहनते हैं और उसके अंदर एक मधुमक्खी फंस गई तो वो हमेशा गुनगुनाते रहेगी और आप उसके अलावा और कुछ नहीं सुन पाओगे। And that's an expression in English where it says that you can't think of anything else except this one thing. और उसका यह जो अंग्रेजी में उसमें यह एक मुहावरा है, उसका अर्थ यह है कि उस एक चीज के अलावा आप किसी और चीज के विषय में नहीं सोच पाओगे। I remember once I was visiting a God-fearing brother in the United States. और मुझे स्मरण आता है एक बार मैं एक परमेश्वर के भय मानने वाले भाई के घर में गया था अमेरिका देश में, who belonged to a particular group that emphasized women dressing modestly and
wailing their heads 24 hours a day. और वो ऐसे समूह के हिस्से थे जहाँ पे मनुष्य स्त्रियों को जोर दिया जाता था कि वे अच्छे कपड़े पहने, सुसज्जित रीति से कपड़े पहने और 24 घंटे अपने सिर को ढाके रहे। Etc. I mean, we had a lot of respect for each other. I've spoken in this church, and after a long time, I was meeting him. I just visited him for a few minutes. और मैंने अनेक बार उसकी कलीसियों में प्रचार किया है और बहुत समय के बाद ऐसा हुआ कि कुछ मिनट के लिए मुझे उससे मिलने का मौका मिला। And what do you think he wanted to talk to me about? और आपको क्या लगता है वो मुझसे किस विषय में बातचीत करना चाहता था? And you think that we talk about Jesus? No. आप सोचोगे कि वो मुझसे यीशु के विषय में बातचीत करना चाहता था? नहीं। He said, Brother Zach, what is this I hear that you are teaching that women do not have to veil their heads for 24 hours? और उसने कहा, भाई ज़ैक, क्या बात है जो मैं सुन रहा हूँ आपके विषय में, और आपने लोगों को सिखाया है कि स्त्रियों को 24 घंटे सिर नहीं ढाकना है, They only need to veil their heads in the meetings. परंतु आपने ऐसा सिखाया कि स्त्रियों को केवल कलीसिया में या मीटिंग में अपने सिर को ढाकना है। That's not exactly the most exciting subject I wanted to talk about. But anyway, since he asked that question, I said, okay, I'll tell you, brother. और यह सबसे दिलचस्प विषय नहीं था जिसके विषय में मैं उनसे बातचीत करना चाहता था, परंतु मैंने कहा ठीक है भाई, यदि आपने यह प्रश्न पूछा है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। I said, you teach, and I saw how these women veil their heads there. They don't veil it completely because it's too hot to wear it all the time. So they gradually move the veil back, and finally just cover the bun on top of their head and cover that 24 hours. और मैंने देखा कि ये स्त्रियां क्या करती हैं, क्योंकि बहुत गर्मी रहता है तो ये सिर को पूरे समय नहीं ढाके रहती, धीरे धीरे पीछे हटा करके अंत में वो केवल अपने जूड़े को ही उस रुमाल से ढाके रहती हैं। Backsliding, it's exactly like that. और आपका बैकस्लाइड होना भी ठीक ऐसा ही है, पीछे हट जाना। Okay. So I told him, I said, Brother, what is the difference between you and me? और मैंने उस भाई को कहा, भाई ठीक है, आपके और मेरे में क्या अंतर है? You tell people to cover the back part of their head, 15% of their head, which is sometimes only their hair, and wear it 24 hours. I tell people to cover their whole head in the meetings only when they pray and prophesy. तो मैंने कहा, भाई आप सिखाते हो स्त्रियों को कि केवल अपने सिर का 15% हिस्सा ही 24 घंटे ढाके रहे, और मैं सिखाता हूँ कि अपने पूरे सिर को केवल सभा तक ही ढाके रहे। But I'm not going to be a legalist and fight about these things. These are not the important things for me. और मैंने उनसे कहा कि मैं कोई परंपरावादी नहीं बनूंगा और इन चीजों के विषय में आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि यह सब मेरे लिए महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं। See, and that is one of the most God-fearing brothers I've met in the United States. और देखिए, यह सबसे परमेश्वर का सबसे अधिक भय मानने वाला भाई थे जिससे मैं अमेरिका देश में मिला था। See, this is how you can go off on a tangent, that you meet a brother and all you can discuss is some little thing of doctrine. और इसी रीति से आप एक चरम सीमा में जा सकते हैं और आप एक भाई से केवल एक छोटे से सिद्धांत के विषय में वाद विवाद कर सकते हैं। These Pharisees were like that. और ये जो फरीसी थे ये इसी प्रकार के थे। What is the great commandment? What shall we discuss? The Sabbath. और उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, हम इसी के ऊपर यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, और वो सबत है। Jesus refused to get involved in that. और यीशु मसीह ने उस विषय में बातचीत करने से बिल्कुल भी मना कर दिया। So he said, I'll tell you. This is verse 36, Matthew 22. Teacher, which is the great commandment in the law? Verse 36, Matthew. और 36 वचन में कहता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी सब आज्ञा सबसे बड़ी है? He said, I'll tell you. उसने कहा कि मैं तुझे बताऊंगा। Which are the 10 commandments? He didn't mention any of them. He mentioned in a summary what all of God's commandments were meant for. और उन्होंने सोचा था कि वह 10 आज्ञा में से किसी आज्ञा को बताएगा या 10 आज्ञा को बताएगा, परंतु उसने एक ऐसा सारांश बताया जिसमें परमेश्वर की सारी आज्ञा समाहित हो गई। You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। And the second is like you love your neighbor as yourself. और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। You can't get it more straight than from Jesus' own mouth. The greatest thing in the Christian life is to love God with all your heart. और इससे ज्यादा आपको स्पष्ट तौर पे और कहीं नहीं मिल सकता है, जिसे स्वयं यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा है कि मसीही जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना। Or like Sandeep was saying yesterday, to love Jesus passionately. और कल संदीप जैसे कह रहा था कि एक उमंग के साथ, एक धुन के साथ परमेश्वर से प्रेम करना is the greatest thing in the Christian life. और यही तो मसीही जीवन में सबसे ज्यादा बड़ी वस्तु मानी जाती है। And Jesus says, but this is not
by itself. If you do that, you will automatically love your neighbor as yourself, and you will love in the church. Neighbor means everybody in the world. And Jesus added one more commandment for us in the church. You love one another in the church as I loved you. और यदि हम पहली आज्ञा को मानेंगे तो उसके साथ साथ दूसरी आज्ञा भी हमारे से अपने आप पूर्ण होगी, अर्थात अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और जितने भी लोग हमारे इस संसार में हमारे आसपास रहते हैं वे हमारे पड़ोसी हैं, परंतु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इसी आज्ञा तक नहीं रोका, परंतु वह इसके आगे बढ़ा करके उनसे बोलता है तुम कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करो, ठीक वैसा ही जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। You love everybody in the world as yourself, but within the church the love is going to be stronger. A new commandment, I will love one another as I have loved you. और संसार के विषय में कहता है कि जैसा तुम संसार अपने पड़ोसी अपने समान तुम अपने पड़ोसी अर्थात संसार के लोगों से प्रेम करो, परंतु जैसे वो कलीसिया में आता है तो वो उसके स्तर को ऊंचा कर देता है और कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है उसी मात्रा में तुम अपने कलीसिया के भाइयों और बहनों से प्रेम रखो। That is the greatest thing. और यही तो सबसे बड़ी आज्ञा है। Now, somebody may say, but Brother Zach, yesterday you said that when you're a child you say you love Jesus, when you're grown up you say Jesus loves me. और कई लोग कहेंगे कि भाई साहब कल ही तो आपने सिखाया था कि जब आप बच्चे हो तब आप कहोगे कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, और जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कहोगे कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। तो मैं आपसे यहाँ पे अपनी गवाही के विषय में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ जो हम करते हैं उसके विषय में। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हूँ आपको बताने के लिए कि हमें यीशु मसीह से धुन के साथ प्रेम करना है। और आप इस बात को कहीं पे भी नहीं देखोगे किसी भी प्रेरित के द्वारा बाइबल में कहते हुए। वे यीशु को बड़ी धुन के साथ प्रेम करते थे। यीशु मसीह ने पतरस से पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? Peter didn't give that reply to John, he gave it to Jesus. Tell Jesus. और पतरस ने उस प्रश्न का उत्तर यूहन्ना को नहीं दिया परंतु यीशु को दिया। वैसे ही आप भी इस प्रश्न का उत्तर यीशु को दें। Lord, I love you passionately. और कहिए कि प्रभु जी मैं तुझसे धुन के साथ प्रेम करता हूँ। I'll tell you why I'm saying this. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों आपसे इन बातों को कह रहा हूँ। It is the most important thing in the Christian life. क्योंकि मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज I है। say it many times to the Lord. और अनेक बार मैंने परमेश्वर से कहा है। Like the Song of Solomon, the bride tells the bridegroom. जैसे कि श्रेष्ठ गीत में दुल्हन दूल्हे से कहती है। Everybody else, hey, I love the bridegroom passionately. But she tells the bridegroom, it is the most important thing in the Christian life. और जैसे दुल्हन हर जगह जा करके नहीं कहती कि मैं दूल्हे से प्रेम करती हूँ, परंतु वह केवल दूल्हे को कहती कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। And that's where I love these songs that some of these mystics, many of them were Roman Catholics, who wrote. Many times I sit in my room and sing those songs. Sometimes I'm walking down the road or lying in the bed. I sing these wonderful songs. My God, how wonderful thou art. और कई बार मैं इन सारे अद्भुत गीतों को जिन्हें अधिकतर रोमन कैथलिक लोगों ने और उनके सन्यासी लोगों ने लिखा है कि हे प्रभु जी कैसे तेरी अद्भुत तेरी रचना है, और मैं इन गीतों को लेटते चलते बैठते और सड़क में चलते हुए अनेक बार मैं इन्हें गाता और गुनगुनाता हूँ। Thy majesty, how bright, how beautiful thy burn. और तेरी महिमा कैसी अपार है। And songs like this, show me thy face, O Lord, one transient gleam of loveliness divine. और एक गीत जो ऐसा कहता है कि अपने मुख के हल्के से प्रकाश को ही मुझे दिखा दे प्रभु जी। I shall never think or dream of other love save thine all lesser light will darken. और मैं तुझे छोड़ और किसी के प्रेम के विषय में नहीं सोचूंगा। All lower glories wane, the beautiful of earth will never seem beautiful again. Many songs like that of devotion. और ऐसे बहुत सारे गीत होते हैं जो भक्ति के गीत होते हैं। all have times like this. और हम में से हर एक को ऐसा समय निकालना चाहिए of devotion to Jesus. यीशु मसीह के प्रति भक्ति का समय। By ourselves. अपने आप से। यही तो सच्ची आराधना है। I never worship God in a crowd. और मैं कभी भी भीड़ में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता हूँ। It's not possible. I can praise God. यह संभव नहीं है। मैं परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ। I can thank God in a crowd and have songs of praise and thanksgiving. But songs of worship I can only sing to God alone. और मैं भीड़ में परमेश्वर की स्तुति आराधना और धन्यवाद के गीत गा सकता हूँ, परंतु उसके आराधना के गीत में केवल उसके साथ एकांत में ही गीत गा सकता हूँ, जिसका मैं वास्तविकता में अर्थ रखता हूँ। For example, I see all these sentimental songs that nowadays written by these modern half-converted cowboys.
और आज मैं देखता हूं कि आज जैसे यह जो बहुत ही ज्यादा संवेदन करने वाले और भावुक करने वाले ये आधा नया जन्म पाए हुए गाय चराने वालों के द्वारा लिखे जाते हैं, Used to write love songs in their unconverted days. और जो अपने अपरिवर्तित दिनों में प्रेम के गीत लिखे करते थे, Just given a little twist to it और थोड़ा सा उन गीतों के शब्दों को उन्होंने घुमा दिया है and directed it towards Jesus. और उसको यीशु मसीह की तरफ मोड़ दिया है। Hold me close, never let me go. और मुझे कस के जकड़ करके पकड़ लो और मुझे कभी जाने ना दो। Who are you talking to? आप किससे बातचीत कर रहे हो? They were singing that to some girl in the old days. Now they don't even put the name of Jesus there. और पुराने दिनों में वे लोग इन गानों को किसी लड़की के लिए गाया करते थे और अब उसे वे यीशु के लिए गा रहे हैं, परंतु वहां पे उसका नाम भी नहीं रखा है। There's something sentimental about it. और इसके विषय में कुछ भावुक करने वाली बातें हैं। Oh, I love him more and more. और मैं उससे ज्यादा और ज्यादा प्रेम करता हूँ। You know, whenever I sing that, और जब कहीं मैं इस गीत को गाता हूँ, I sing it a little differently. I'll obey him more and more. तो मैं इसे थोड़ा बदल करके गाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं उसकी आज्ञा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मानूंगा। I love him more and more. I'll obey him more and more. और मैं ऐसे नहीं गाता हूँ कि मैं उससे और बढ़ के प्रेम करूंगा, परंतु मैं गाता हूँ कि मैं उसकी आज्ञा और बढ़ के मानूंगा। Sing it like that and see it makes a difference. और आप इस रीति से गाइए और देखें कि आपके जीवन में अंतर उत्पन्न करेगा। Because Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. क्योंकि यीशु I don't मसीह want to fool myself. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता That हूँ। I'm passionately loving the Lord if I'm not passionately obeying God's commandments. और मैं अपने आप को इस रीति से धोखा नहीं देना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ धुन के साथ, यदि मैं उससे धुन के साथ उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा हूँ तो। There are two marks that I love Jesus passionately. और केवल दो चिन्ह है इस बात के लिए कि मैं यीशु के साथ बड़ी धुन के साथ प्रेम कर रहा हूँ। One, पहला, that I keep all his commandments. I have a passionate desire to obey every single thing. कि मैं उसकी हर एक आज्ञाओं को मानता हूं और मेरे अंदर एक बड़ी धुन रहती है कि उसके आज्ञा की, उसके वचन की एक एक बातों को मैं मानूं। God's word says. जो परमेश्वर का Whether it's a वचन small कहता है, thing, like teaching women to cover their heads, or whether it's a big thing, like by forgiving all those who hurt. चाहे वो छोटी सी बात रहे लोगों को सिखाने के लिए और आज्ञा पालन करने के लिए कि स्त्रियों को कलीसिया में अपने सिर ढकना है, या बहुत ही बड़ी वचन की शिक्षा की बात रहे कि मुझे संसार में हर एक व्यक्ति को क्षमा करना है। It doesn't make a difference to me. और इससे मेरे जीवन में कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता है। If I believe, either I believe this is God's word, or I don't believe it's God's word. I believe it's God's word. If there's a single thing, big or small, in God's word, I love Jesus, I keep his commandment. I don't. और बात केवल इतनी है कि या तो मैं इस वचन के ऊपर विश्वास करूं कि परमेश्वर का वचन है, या मैं इसके ऊपर विश्वास पूरे रीति से ना करूं कि यह वचन नहीं है। इसलिए इससे कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता है कि मैं छोटी आज्ञा बड़ी आज्ञा को दरकिनार करूं, परंतु मैं हर आज्ञा को I don't care मानूंगा। what people think about it. Secondly, दूसरी बात, but I won't be a legalist. मैं एक नियमवादी नहीं You बनूंगा। see, I can take some small commandment and compel people to live according to my life. I don't do it. और मैं चाहूं तो मैं एक आज्ञा को ले सकता हूं और लोगों को जो ज्योति मुझे प्राप्त है उसके अनुसार उसी आज्ञा में विवश करूं जीवन जीने के लिए। I sometimes preach in churches in the United States where there are 2,000 people sitting there and 1,000 women. None of them cover their heads. My subject is not covering your head. My subject is holiness. और कई बार मैं अमेरिका देशों में बड़े बड़े कलीसिया में प्रचार करता हूं जहां पे 2000 लोग बैठे रहते हैं, वहां पे 1000 महिलाएं रहती हैं जो उनमें से कोई भी सिर नहीं ढाके रहता है। तो मैं उनसे सिर ढाकने के विषय में प्रचार नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा विषय वहां पे सिर ढाकने नहीं परंतु पवित्रता रहती है। So we got to be wise in all these things. You can have a bee in your bonnet where something is the most important thing for you, and that's not the most important thing in the Christian life. और इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा ईमानदार होना है इन क्षेत्रों में। और कई बार आपके दिमाग में मधुमक्खी घुस सकती है। What is the greatest commandment? और सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? God with all your heart. परमेश्वर के साथ परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से प्रेम करना। But you can't force a person. Some people haven't seen some commandments. You can't force them. परंतु आप लोगों को कोई आज्ञा मानने के लिए विवश नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अनेक प्रकार की आज्ञाओं को नहीं देखा है। It's only when they see it they can obey it. वे लोग जब उसे देखेंगे तभी तो वे उसकी आज्ञा मान That's why the पाएंगे। Bible also says, don't judge somebody else. You do it yourself. तभी तो बाइबल कहती है कि तुम किसी दूसरे का न्याय ना करो, परंतु तुम अपने आप का न्याय करो। What is the difference between discipline and legalism? और अनुशासन करने में या नियमवादी बनने में क्या अंतर होता है? Discipline is where, because of my love for Christ, I have disciplined my body.
और अनुशासन यह होता है कि मेरा जो प्रेम है मसीह के लिए, उसके कारण मैंने अपने शरीर को अनुशासित किया है। In certain areas, और अनेक क्षेत्रों में, maybe in the amount of sleep I have, the amount of food I eat, और हो सकता है कि मेरे सोने के क्षेत्र में, मेरे खाने के क्षेत्र and में, keeping myself fit perhaps, और अपने आप को तंदुरुस्त रखने के विषय and में, reading the Bible and और बाइबल पढ़ने के विषय studying the में, scriptures. वचन का अध्ययन करने के These विषय are में, disciplines और यह सारे जो है अनुशासन है। which you cannot live the holy life if you're not disciplined. और यदि आप अनुशासित नहीं है तो आप पवित्र जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। Discipline in the way you spend time on different things. और अनेक चीजों में आप किस रीति से समय व्यतीत करते हैं, उसमें अनुशासन। Discipline, I still feel that there's a lot of areas in my life I need to be more disciplined. और अभी भी मुझे लगता है कि मेरे जीवन के अनेक क्षेत्र हैं जहां पे मुझे अनुशासित होने की जरूरत है। But I'm working towards it slowly. Discipline in the amount of time we spend on the internet, and discipline in the amount of time we spend reading newspapers and other books. और हमें इस बात में अनुशासित होना है कि हम कितना समय इंटरनेट को दे रहे हैं, कितना समय हम बाकी चीजों के अध्ययन में लगा रहे हैं, Even in listening to music. और यहाँ तक कि हम गीत सुनने में कितना समय लगा रहे I हैं। feel there are a lot of young people today who don't have time to read the Bible. और आज मुझे लगता है कि आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जवान लोग हैं जिनके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, But have time to listen to what they call Christian rock. परंतु उनके पास समय है उन चीजों को सुनने के लिए जिसे वे कहते हैं मसीही रॉक संगीत, Which is imitating the worldly rock music. और जो संसारिक रॉक म्यूजिक की नकल है। It is not originally Christian. It didn't come from the Holy Spirit. They saw something in the world and they imitated it and put Christian words to it to try and attract the young people. और ये मूलतः मसीही गीत नहीं है, परंतु उन्होंने कुछ चीजों को संसार में देखा, उसमें मसीही शब्द डाले ताकि मसीही लोगों को अपने गीतों के माध्यम से आकर्षित करें। Do you think that Jesus tried to attract the young people in that day by seeing what worldly people were doing, the Greeks and the Romans? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह अपने दिनों में जवानों को उन्हीं चीजों से आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था जिसे संसारिक लोग अर्थात उन दिनों के यूनानी लोग या रोमी लोग कर रहे थे? And say, let me reach people like that. No. क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि उनके तरीके से मैं लोगों तक पहुंचूंगा? नहीं, उसने ऐसा नहीं He कहा। depended on the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहता था। The Holy Spirit has been replaced by music today. पर आज पवित्र आत्मा को संगीत ने बदल दिया The है, Holy Spirit has been replaced by money. और आज पवित्र आत्मा की जगह पैसा ने ले Why लिया is है। it there's so much emphasis on money today in Christian work, but no emphasis on money in Christian work in the New Testament? और आज क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जाता है पैसे के ऊपर मसीही सेवा में, मसीही सेवकाई में, परंतु हम देखते हैं कि नए नियम की प्रथम शताब्दी की कलीसियाओं में पैसे के ऊपर जोर नहीं दिया जाता था, They had emphasis on the Holy Spirit. और उनका जोर रहता था वह पवित्र आत्मा के ऊपर रहता था। The Holy Spirit's been replaced by money, music, and psychology today. और आज जो पवित्र आत्मा है उसे पैसे ने, संगीत ने और मनोविज्ञान ने बदल दिया है। You got to be very careful. And that's why you have a generation of young people growing up in many churches, including many young people in our midst, who are taken up with what they call Christian rock. और इसीलिए तो आज हमारे मध्य में एवं हमारी कलीसियाओं में युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी बड़ी हो रही है जो एकदम ज्यादा इस मसीही रॉक संगीत से ग्रसित है। What's the source of it? That's what I want to know. Always take the source of good doctor. और हमेशा आप उसकी जड़ तक पहुंचे। एक जो अच्छा डॉक्टर होता है You say, where does that fever come from? वह केवल बुखार को नहीं देखेगा, परंतु इसको देखेगा कि वह बुखार कहाँ से आ रहा है, It comes from tuberculosis. और वह जानेगा कि यह बुखार जो है वो टीबी की वजह से आ रहा है। Don't just give him a Prozac and get rid of the fever. Deal with the root. So what- और उसे केवल प्रोसीन दे करके उसके बुखार से उसे ठीक ना करो, परंतु जड़ के साथ निपटारा when you करो। think of Christian rock, please trace it to its root. और जब कभी आप मसीही रॉक संगीत देखते हो तो आप उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश You find करो, it's not the Holy Spirit. तो आप जानेंगे कि वह पवित्र आत्मा नहीं है, It's worldly, demonic, और यह संसारिक है और शैतान के द्वारा प्रेरित है। rock musicians, and the Christians try to imitate them with wearing vests and black dress and black strummy guitars. और इसे मसीही जो गीतकार लोग हैं उसे काले बनियाइन और काले कपड़े पहन करके और अपने गिटार बजा करके उसकी नकल करने की कोशिश करते And all हैं। that. And you watch these Christians. और आप इन मसीही लोगों को देखो, They don't overcome sin in their life. वे अपने जीवन में पाप के ऊपर जयवंत नहीं होते हैं, They don't have time for the Bible. उनके पास बाइबल के लिए समय नहीं होता है। They spend hours practicing their guitars and listening to these worldly rock musicians and trying to imitate that in their own life.
और वे घंटों व्यतीत करते हैं अपने गिटार का अभ्यास करने में और इन सांसारिक मसीही रॉक संगीतकारों को सुनने के लिए और घंटों उनके गीतों को रियाज करने में लगाते हैं। No, all I'm saying is it's not godly. I cannot imagine Jesus when he was 15 years old listening to that type of thing, even if such things were there in his day. मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो है वह भक्ति की चीजें नहीं है, और मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि यीशु मसीह जब वो 15 वर्ष का था तो ऐसी चीजों को सुनता, यदि उसके समय में ऐसी चीजें रहती भी तो। And you really want to follow Jesus? This is not the way to reach the world. I'll tell you that. और यदि आप सचमुच में यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो यह वह तरीका नहीं है। People ask me, what do you think of Christian rock? और लोग मुझसे पूछते हैं आप मसीही रॉक के विषय में क्या कहते हो? I say Christian rock, that's like asking me what I think of Christian adultery. और मैं उनसे कहता हूँ मसीही रॉक वैसे ही जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो मसीही व्यभिचार क्या होता है। Christian adultery, what's that? मसीही व्यभिचार क्या होता है, ये क्या चीज हुई? Adultery between two Christians? दो मसीहों के बीच में व्यभिचार, Christian murder. या मसीही हत्या। What's Christian murder? मसीही हत्या क्या है? What is Christian stealing? मसीही चोरी क्या है? What is Christian rock music? और मसीही रॉक म्यूजिक क्या There है? is no such thing. ऐसी कोई चीजें होती ही नहीं है। So I'm just saying that, all this sentimental stuff, today's music, there's so much of sentimentality. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के संगीत में इतनी ज्यादा भावुक करने वाली चीजें If होती you हैं। compare the music written by people today compared to the music written 100 years ago and 200 years ago by people like Charles Wesley, तो यदि आप आज के संगीत को और आज से 200 वर्ष पहले जैसे चार्ल्स वेस्ले ने जिन गीतों को लिखा मसीह के लिए, यदि आप इन दोनों गीतों की तुलना करेंगे and Fanny Crosby and all those people, you see one fundamental difference. और यदि फैनी क्रॉस्बी के गीतों को और आज के गीतों की तुलना करोगे तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को देखोगे। They wrote hymns of tremendous devotion और उन्होंने ऐसे भजन लिखे जो भक्ति से भरे हुए थे to Christ and of service. और मसीह के प्रति भक्ति से भरे हुए थे और मसीह की सेवा के प्रति भक्ति से भरे हुए थे। That drove people to the mission field and sent people to preach the gospel and sacrifice. और उन गीतों ने लोगों को ऐसा किया कि वे मिशनरी बन करके मिशन फील्ड में जाएं और त्यागपूर्ण जीवन जिए। Today's musicians, और आज के जो संगीतकार हैं they write about 3 lines which you sing about 10 times. और वे 3 लाइन को लिखते हैं जिसे वो 10 बार गाते हैं। If you don't believe me, look at the song you sing. 3 lines. They don't have any more inspiration, and most of those lines are, I love him, I love him, I love him. The lines itself have repetitions, and then you repeat that 10 times or something like that. और यदि आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं आजकल के गीतों को उठा करके देखें, उसमें केवल एक ही पंक्ति रहती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। यही एक पंक्ति 3 बार रिपीट होती है और इसे वे 10 बार दोहरा करके और गाते हैं। There's no, and do you know that another difference? Charles Wesley didn't make money from his music, from his songs. और एक और अंतर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चार्ल्स वेस्ली था वो अपने संगीत के माध्यम से पैसे नहीं कमाता था। Today's musicians produce CDs and produce millions. और आज के जो संगीतकार गायक होते हैं वे अपनी सीडी बना करके करोड़ों रुपए कमाते Now I हैं। want to ask you all a straight question. मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा। If you have a preacher here, यदि आपके पास यहाँ पे एक प्रचारक है does not take money जो पैसा नहीं लेता for है his preaching, अपने प्रचार के लिए, but preaches really sincerely seeking the glory of God, लेकिन बहुत ही गंभीरता से परमेश्वर की महिमा को खोजते हुए प्रचार करता है, and another preacher और एक और who प्रचारक है wants to make money out of his sermons and out of his books, you tell me, और जो अपने प्रचार के माध्यम से और अपने शिक्षाओं के माध्यम से पैसा कमाना चाहता है, आप मुझे बताइए which of these two do you think would have a word from God? आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किस व्यक्ति के पास परमेश्वर के द्वारा पहुंचा हुआ वचन होगा? The first one or the second one? पहले वाले के पास या दूसरे वाले के पास? Okay. You're sure? क्या आप सही कह रहे हैं? Okay. Now here we have two musicians. और यहाँ पे 2 संगीतकार One हैं who did not write any of his songs to make money and never made any money. और एक व्यक्ति ने गीत इसलिए लिखे ताकि वो किसी पैसा कमाने के लिए गीत नहीं लिखे और कभी भी उसने अपने गीतों से पैसा कमाया भी नहीं। And here's another musician और यहाँ पे एक और गायक है who wrote his songs and produced CDs to make millions. और जिसने गीत लिखे और उनसे सीडी बनाया और उससे करोड़ों रुपए कमाया। Which of these songs do you think will be inspired by God? Give me a right answer. और आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसके गीत परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होंगे? आप मुझे एक ईमानदार उत्तर दीजिए। And you'll know why I'm not so fascinated by today's music. और तब आप जान जाएंगे कि मैं आजकल के संगीतों के द्वारा क्यों इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं होता हूँ। Money is the greatest opposite to God. पैसा जो है वो परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी है।
And the thing is, many of you don't have discernment. You say it sounds so nice. What sounds so nice? The beats. और आप में से बहुत मुख्य बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को परख ही नहीं है। आप कहते हैं कि उसकी वो बहुत अच्छा सुनने में लगता है। क्या सुनने में अच्छा लगता है? उसकी धुन सुनने में अच्छी लगती है। And that's why your Christian life is so shallow. और यही कारण है कि आपका मसीही जीवन इतना उथला है। And that's why your children go astray. और इसीलिए आपके बच्चे भटक जाते हैं। I want to tell you straight. I'm holding you to the highest. मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत ऊंचा उठा करके रखा हूँ। It may take time to get there. वहां पहुंचने में आपको समय लग सकता है। Now you may be passing through a phase. और हो सकता है कि आप एक ऐसे दौर से होकर गुजर रहे हैं where you young people want to, appear like they say cool and accepted with your friends. That's fine. जहाँ पे आप जवान लोग अपने दोस्तों के साथ कूल और उनके बीच में ग्रहण योग्य बनना But चाहते what it हैं। says, when Jesus was 15, he did not want to appear cool and accepted with his friends. और हो सकता है कि आप ऐसे दौर से होकर के गुजर रहेंगे, परंतु यीशु मसीह जब 15 वर्ष की आयु का था तब वह अपने दोस्तों के मध्य में कूल एवं उनके बीच में ग्रहण योग्य नहीं बनना चाहता था। What shall I hold up to you? The standard of some third-rate, half-converted cowboy? और मैं आपके सामने क्या चीज को ला करके खड़ा रखूं? एक आधे मन से आए हुए गाय चराने वाले के स्तर को, Or the standard of Jesus when he was 15 years old? या यीशु मसीह के स्तर को आपके सामने रखूं जो वो 15 वर्ष का था? That's the only one standard we hold up in the church. और यही तो केवल एकमात्र मापदंड एवं स्तर है जिसे हम कलीसिया में रखते हैं। I'm not going to condemn you. I'm not saying you shouldn't come to the church. I'm telling you, this is the standard we preach in the church. Whether you're 5 years old, 10 years old, you see the footsteps of Jesus as a 5-year-old, as a 10-year-old, as a 15-year-old. See the footsteps of Jesus when he was 20 years old. और मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि चाहे 5 साल के हो, 10 साल के हो, आप यीशु मसीह के पद चिन्हों को देखें। He was tempted in every single point as we are. वो हर एक बातों में हमारे समान परखा गया। And the Bible says, और बाइबल कहती है, the Bible not only says this is the secret of godliness. बाइबल केवल इतना ही नहीं कहती कि भक्ति का भेद है। In 1 Timothy and chapter 3, the secret of godliness is that Christ came in the flesh. पहला तीमुथी 3:16 में कहता है भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर देह रूप में प्रकट And हुआ। is pure in his spirit. No human being from the time of Adam had the flesh could keep his spirit righteous and pure. और उसकी आत्मा पवित्र थी, लेकिन कोई भी मनुष्य आदम के समय से आज तक नहीं हुआ जिसने अपने शरीर और अपनी आत्मा को पवित्र रखा होगा। Nobody. कोई भी नहीं हुआ। The first person who came in flesh पहला व्यक्ति जो शरीर में होकर with आया, a will of his own. When I say flesh, I don't mean he had sinful lusts. और जब मैं कहता हूँ शरीर, तो मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर पापपूर्ण लालसाएं थी। He did not have sinful lusts. There was no sin in him. उसके अंदर कोई पापपूर्ण लालसाएं नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था। But he had what is the root from which sin comes out in all of us, which is my will. परंतु उसके पास वह जड़ थी जिसमें से सारा पाप निकलता है, और वह है मेरे स्वयं की इच्छा। All sin comes out of my will. और सारे पाप जो है वो मेरे स्वयं की इच्छा से निकलते हैं। Did Jesus have a thing called my will? क्या यीशु मसीह के पास एक ऐसी वस्तु थी, अर्थात मेरी स्वयं की इच्छा? Of course he had. हाँ, उसके पास स्वयं की इच्छा थी। And it was something he had to deny. और उसे प्रतिदिन इनकार करना पड़ा। In the Garden of Gethsemane he said, not my will, गethsemane के बाग में उसने कहा मेरी इच्छा नहीं, but your will. What does that mean? परंतु तेरी इच्छा पूरी। और इसका अर्थ क्या है? That means Jesus' will was against his Father's will. उसका अर्थ यह था कि यीशु मसीह की इच्छा जो थी वो उसके पिता की इच्छा के विपरीत थी। That's what we call the flesh. The और इसे ही तो हम शरीर कहते हैं। definition of flesh is my will. और जो शरीर की परिभाषा है वह है मेरी इच्छा। Jesus had it. और यीशु के पास उसके स्वयं की इच्छा थी, And he denied it. परंतु Not उसने just उसका इनकार किया। in Gethsemane, he denied it in all the days of his flesh. और वो अपने शरीर के रहने के सारे दिनों तक उन चीजों का इनकार करता रहा, With loud crying and tears. और आहें भर भर के और बड़े शब्द से पुकार करके। And it's this my will that you see in a 2-year-old child who refuses to yield to the commands of his parents. और यही तो मेरे स्वयं की इच्छा जो है उसे हम एक 2 वर्ष के बच्चे के अंदर भी देख सकते हैं, जो अपने माँ बाप के अधीनता में नहीं रहना It's चाहता है, there. वो उसके अंदर रहती है। What Jesus denied. He denied it when he was 5 years old. He और यीशु मसीह ने इसका इनकार किया जब वो 5 वर्ष का था तब किया। denied it when he was 10 years old. He denied it with 15, 20, all the way to 33. And 10 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में, पूरा 33.5 वर्ष की आयु तक उसने अपनी इच्छा का इनकार किया। he said, it is finished. और अंत में उसने कहा कि पूरा हुआ। I denied my will in every single possible area
that any human being can be tempted to do his will. और उसने कहा कि मैंने अपनी इच्छा को हर एक क्षेत्र में खंडित किया है, जिस क्षेत्र में हर इंसान इस संसार में रहने वाला परखा जा सकता है। He denied it. That's what he meant when he said it's finished. और उसने अपनी इच्छा का इनकार किया, और यही तो उसके कहने का अर्थ था जब उसने कहा कि पूरा हुआ क्रूस के ऊपर And से। that's when the veil of the temple was torn. और उसी समय जो मंदिर का पर्दा था वो फट गया। And Hebrews 10:20 says that veil is a picture of Jesus' flesh. और इब्रानी 10:20 में कहता है कि वह जो पर्दा यीशु मसीह के शरीर का चित्र है, It is my will. अर्थात मेरा स्वयं की इच्छा, It was torn from top to bottom. और वह पर्दा ऊपर से नीचे तक Which फट गया। means Jesus did it by the power of God. उसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा The किया Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा किया। And you and I can't do it. It wasn't torn from top, bottom to top. Some of us are doing it. That's legalism. Try and tear the veil from the bottom to the top. You can't do it. और हम और आप क्या करते हैं कि कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि हम उस पर्दे को नीचे से ऊपर फाड़ने की कोशिश करते हैं, और वो परंपरावादी बनना हो जाता It है। has got to be torn from the top to. उस पर्दे को ऊपर से नीचे फटना है। God has to do it. God has to give us the power of the Holy Spirit परमेश्वर को ऐसा करना है, परमेश्वर को हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देना है to walk this way. ताकि हम इस मार्ग में चल सकें। The way into the most holy place is already open. You don't have to rent that veil again. But महापवित्र स्थान के लिए जो रास्ता पहले से ही खोल दिया गया, आपको फिर से उसे खोलने की जरूरत नहीं है। we have that flesh that Jesus had, which we must, by the power of the Holy Spirit, walk this new and living way to go the way Jesus went. And और हमारे पास यह मार्ग खुला हुआ है कि हम उस नए और जीवते मार्ग में यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश कर it's not a सकते हैं। theory. यह कोई सिद्धांत नहीं है। If you're walking that way, it's not seen by your talking about it. It's seen by the fact that people will see you becoming more and more Christ-like every और यदि आप उस मार्ग में चल रहे हैं तो उसका चिन्ह यह नहीं है कि आप उसके विषय में बातचीत करेंगे, परंतु उसका चिन्ह यह है कि लोग आपको दिन प्रतिदिन और अधिक यीशु के समान बनता हुआ देखेंगे, year. More and more gracious, more and more gentle. और आपको और अधिक अधिक दीन और नम्र बनता हुआ देखेंगे। When people in CFC who know me for 33 years say, Brother Zach has changed, और जब सीएफसी के लोग जिन्होंने मुझे 33.5 वर्ष से देखा और कहते हैं कि भाई जैक बदल गए I'm हैं, not ashamed of that. तो मैं उस बात से लजाता नहीं हूँ, I say, I hope I've changed. और मैं कहता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि मैं बदल गया हूँ। I was pretty legalistic 30 years ago. क्योंकि 30 साल पहले मैं खुद बहुत ज्यादा रूढ़िवादी और नियमवादी था, And if I've not changed in 30 years, I should hang my head in shame. और यदि मैं 30 वर्षों में नहीं बदलता तो मुझे शर्म से अपने सिर झुका लेना चाहिए। Now, I don't expect a young person, 15-year-old, to have the maturity that I have at 69. और मैं इस बात की आशा नहीं करता कि एक 15 साल के लड़के के अंदर वही परिपक्वता हो जो मुझ 69 वर्ष के व्यक्ति के अंदर है। नहीं, That's like saying if a 10th standard student looks down on a first standard student and say, hey, why don't you know calculus? और ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक 10वीं कक्षा का विद्यार्थी पहली कक्षा के विद्यार्थी को देख करके कहता है कि तुझे कैलकुलस क्यों नहीं Who is आता। the fool? मूर्ख कौन है? The 10th standard student. 10वीं कक्षा का विद्यार्थी। How can you expect a first standard student to know even geometry, तो आप पहली कक्षा के विद्यार्थी से कैसे आशा करते हो कि वह ज्योमेट्री को भी जान पाए, leave alone calculus? या कैलकुलस And को? if you, as a 60-year-old or 50-year-old, expect a 14-year-old to have the maturity you have, I'm sorry to say, brother, you're the fool. और यदि आप जो 60 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, यदि आप चाहते हैं कि 15-20 वर्ष के लोगों के अंदर आपके समान परिपक्वता हो तो आप मूर्ख So हैं। you're the fool. They won't have your maturity. But sin is the same. When a 3-year-old says no to his father, that is sin. उनके अंदर वो परिपक्वता नहीं होती है, परंतु पाप तो एक समान होता है। जब एक 3 वर्ष का बच्चा अपने पिता को कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो पाप है। I mean, he may not have maturity, but he's got sin. और हाँ, उसके पास परिपक्वता नहीं हो सकती, परंतु यह पाप है। Child to be suddenly 6 feet tall, but I expect him to be healthy, even if he's only 2 feet. और मैं एकदम से नहीं चाहूंगा कि बच्चा 6 फीट का हो जाए कुछ ही दिनों में, परंतु मैं चाहूंगा कि बच्चा स्वस्थ रहे, भले ही वो 2 फीट का क्यों ना रहे। Tall. Health is what we require from our young people, not maturity. Maturity may take a long time, but they हम अपने जवान बच्चों से स्वास्थ्य की आशा करते, ना कि परिपक्वता can की। never be healthy if they are following the examples in the world. और वे कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे यदि वे संसार के उदाहरणों का अनुसरण करेंगे। So when we talk about love for Jesus and all these modern courses and all, we have to be very careful. Some of them are excellent. और जब हम यीशु मसीह के प्रति प्रेम के विषय में बात करते हैं आज की इस आधुनिक दुनिया में, तो हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है, और कई लोग इसमें बहुत उत्कृष्ट होते हैं। But some of them are written by these half-converted cowboys
परंतु कई ऐसे गीत रहते इसके विपरीत में जो ऐसे आधे मन से आए हुए गाय चराने वालों के द्वारा लिखे जाते हैं, don't know Jesus. जो यीशु के विषय में नहीं जानते हैं। It's sentimental love ballads which they used to sing in their unconverted days to men and women, to other boys and girls. Now they think that they can. It's a frothy, sentimental love for Jesus, which does not make them obey God's commandments, which does not make them fervently love others. And that is why you see, और यह केवल एक झाग के समान है जो उन्हें यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश नहीं करता है। the hymns that people sang years ago made many of them leave their countries and come to difficult lands like India as missionaries. और आज से जो 200-300 वर्ष पहले जो भजन लिखे गए, उन भजन ने लोगों को ऐसा जकड़ा कि वे लोग अपने देश को छोड़ करके भारत जैसे कठिनाई भरे देश में मिशनरी बन करके आए। My wife and I know a very godly missionary lady who is about 85 or 90 years old now, who came to India as a young 25-year-old nurse, worked in the deserted villages in Maharashtra. That's where my wife went to work with her. और हम आज एक 85 वर्ष की महिला को जानते हैं जो विदेश से भारत आई थी जब वो 25 वर्ष की जवान स्त्री थी, और उसके बाद वो एक भारत के दुर्गम गांव में काम करी। और हम लोग उसे इसलिए जानते हैं क्योंकि शुरुआती दिनों में भाई की पत्नी ने भी वहीं पे ट्रेनिंग किया था। और एक ऐसा गांव जो कोढ़ियों से भरा है और जहाँ पे सबसे ज्यादा नाग सांप पाए जाते हैं, और वहाँ पे कोढ़ी ही कोढ़ी है, और वहाँ पे कोई सड़क नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। And here was a young 25-year-old nurse from America came there. और यहाँ पे एक 25 साल की जवान नर्स है जो अमेरिका से वहाँ सेवा करने आई है ऐसे गांव में। With others and built buildings there, would take the leper babies and keep 25 years old, like some of you young girls at 25 gave up. और उसने आकर के वहाँ पे भवन का निर्माण किया, जवान और छोटे बच्चों को जिन्हें कोढ़ हो गया उन्हें ला करके उनकी सेवा किया। और केवल 25 वर्ष की थी वो महिला, और आप 25 वर्ष की बाकी बहन लोग उनसे सीख सकते हैं। और उसने उन कोढ़ से ग्रसित बच्चों को अपने आश्रम में लाया और उनकी सेवा किया, और उनमें से बहुत सारे को मसीह में आने की अगुवाई किया। She didn't grow up singing sentimental love songs to Jesus. और वह यीशु मसीह को प्रति भावनात्मक प्रेम के गीत गा करके बड़ी नहीं हुई। Her love for Jesus was manifested in sacrifice and a tremendous passion like Jesus had. और उसका प्रेम यीशु मसीह के प्रति इस बात में प्रदर्शित हुआ कि वह त्यागपूर्ण जीवन उसने जीना चाहा, और उसने उसी आचरण को रखा जो यीशु के अंदर था, कि वही आचरण जो यीशु के अंदर था, अर्थात वह स्वर्ग से पृथ्वी में आया, और उसने भी वही आचरण रखा कि वह दूसरों को सुसमाचार दे। But all these fellows who are singing these songs today in the United States and other places, you don't see them coming with that type of missionary passion today. और ये सारे लोग जिनको आप देखते हैं बड़े-बड़े अमेरिका के देश में से गीत को गाते हुए, ये भारत देश में ऐसा बोझ लेकर के ऐसी धुन के साथ नहीं आते हैं। Missionary passion has gone. और आज जो मिशनरी बनने की उमंग है, धुन है, वो चले गई है। What are they doing? They're singing sentimental love songs. और वे क्या कर रहे हैं? वे लोग केवल भावनात्मक प्रेम के गीत को गा रहे हैं। And what are their leaders? These charismatic leaders who teach people to sing these songs, what are they doing? और उनके अगुवे क्या कर रहे हैं? अर्थात ये करिश्माई अगुवे क्या कर रहे हैं, है ना, जो ऐसे लोगों को ऐसे गीत सुनने और गाने के लिए प्रेरित करते हैं। They never come here to these jungles of India and Africa, no. और ऐसे प्रचारक लोग भारत और अफ्रीका के जंगल में कभी नहीं आएंगे। They go to the posh amphitheaters in America and और वे अमेरिका के बड़े-बड़े एम्फी थिएटर में, एकदम बड़े-बड़े ऑडिटोरियम में जाएंगे। $10,000 per evening to preach a message. They'll arrive there in their helicopters, preach the message and go away. और वे एक शाम की सभा के लिए आएंगे, 4.5 लाख रुपए उसकी फीस लेंगे, और उस ऑडिटोरियम के छत में वो अपने हवाई जहाज से उतरेंगे और सीधा वहीं से हवाई जहाज पकड़ के अपने घर को चले जाएंगे। What a difference between today's preachers and which you see them on television and you open your mouth and say, "Wow, what a man of God." और क्या अंतर है आज के प्रचारकों में और उन प्रचारकों में? आज आप टीवी में प्रचारकों को देखते हो और अपने मुंह खोल करके कहते हो, परमेश्वर का कितना महान उसका जन है। I tell you who's a real woman of God, woman like that. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की सच्ची स्त्री या सच्चे जन कौन है, उस महिला के समान जो 90 वर्ष की आयु की हो गई है। I have 100 times more respect for them than all these modern preachers. और इन आधुनिक प्रचारकों से 100 गुना ज्यादा मैं उस महिला का आदर और सम्मान करूंगा। These modern preachers are being brought up in this so-called Christian rock and all this rubbish.
और यह जो आधुनिक प्रचारक लोग हैं, इनका जो पालन पोषण हुआ है, यह सारे कचरों के बीच में और मसीही रॉक संगीत के बीच में हुआ है। Sentimental love for Jesus. I want to tell you, my और brothers इनका जो पालन पोषण हुआ है, वो यीशु मसीह के प्रति भावनात्मक प्रेम के गीतों के बीच में हुआ है। and sisters, मैं आपसे कहना चाहूंगा भाइयों और बहनों, this is the truth I preached 33 years ago. और यह वह सत्य है जिसे मैं आज से 33.5 वर्ष पहले प्रचार This is करता the truth था, I preach today. We और यही सत्य को मैं आज भी प्रचार करता हूँ। haven't changed the standards in the church. और हमने अपने कलीसिया के मापदंड और स्तर को नहीं बदला है। We don't judge anyone. If you want to go that way, you can go. God हम किसी का न्याय नहीं करते हैं। यदि आप उस रास्ते में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। Himself doesn't stop people from going to hell. परमेश्वर स्वयं लोगों को नहीं रोकता है नरक जाने से। So we can't stop you from being carnal. इसलिए हम आपको सांसारिक होने से नहीं रोक We सकते can't हैं। stop you from being worldly. इसलिए हम आपको सांसारिक बनने से नहीं रोक And सकते हैं। God doesn't stop people from going to hell. Do you know how many millions went to hell yesterday? और परमेश्वर स्वयं लोगों को नरक जाने से नहीं रोकता। आपको पता है कल कितने सारे लोग नरक में गए, कितने करोड़ों लोग कल के दिन नरक में उतर गए, क्या आप You know, जानते within हैं? the 3 days that we had this conference, how many people God allowed to go to hell in the world? और क्या आप जानते हैं बीते 3 दिन से जो हम यहाँ पे सभा लगा रहे हैं, कितने सारे लोगों को परमेश्वर ने नरक में जाने की अनुमति दिया है? He didn't stop any of them. उसने किसी को नहीं रोका। He didn't catch them by the neck and say, hey, don't go to hell. और परमेश्वर ने किसी को गले से पकड़ करके नहीं रोका और कहा कि ए तू नरक मत जा। Now I'm not going to catch anybody by the neck and say, stop listening to Christian rock. और मैं भी किसी को गले से पकड़ करके नहीं रोकूंगा कि तू मसीही रॉक संगीत को सुनना बंद कर दो करके। No, no, no. नहीं, Go on and listen to it. मैं कहूंगा जा करके सुनो। There's a verse in the Bible where it says, be filthy. बाइबल में एक वचन पाया जाता है जो कहता है कि और अशुद्ध बनो। There's a verse in the Bible which says, be unrighteous. और बाइबल में एक वचन है जो आपको कहता है अधर्मी बनो। Can you imagine a holy book teaching us to be unrighteous and filthy? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पवित्र पुस्तक हमें यह सिखा रही है कि तुम अपवित्र बनो और अशुद्ध बनो, अधर्मी बनो? Turn to Revelation 22. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय को निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। It says here, if you are doing wrong, please continue to do wrong. और वो यहाँ पे कहता है यदि तुम गलत कर रहे हो तो गलत करते चले जाओ। You think that is in some book written by the devil? No, this is the inspired word of God written by the Holy Spirit. और आप सोचोगे कि यह कोई ऐसी पुस्तक के वचन है जो शैतान के द्वारा लिखे गए हैं। मैं कहूंगा नहीं, परंतु यह ऐसी पुस्तक है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया And है। he says here, those who are doing wrong, please continue to do wrong. और वो कह रहा है कि जो गलत कर रहे हो वो गलत करते ही चले जाओ। Those who are filthy, continue to be filthy. और जो मलिन है वो मलिन बना रहे। That means become more filthy. उसका मतलब यह है कि वो और गंदा हो जाए और गलत करता रहे। You think John didn't hear that right? John, did you hear God correctly? Yes, sir. और आप सोच रहे होगे कि शायद यूहन्ना ने सही रीति से परमेश्वर के वचन को नहीं सुना होगा। और आप यूहन्ना से प्रश्न कर सकते हैं, यूहन्ना क्या तूने सही रीति से सुना है? तो मैं आपसे कहूंगा श्रीमान, हाँ, यूहन्ना ने बिल्कुल सही रीति से परमेश्वर की आवाज को सुना Heard है। God correctly. Let the one who does wrong continue to do wrong. वह जो गलत और अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे। Let the one who is filthy continue to be वह जो filthy. अशुद्ध और मलिन है वो अशुद्ध और मलिन बना रहे। That I never understood that word for many, many years और अनेक वर्षों तक मैं इस वचन को नहीं समझ पाया था, until God gave me light on it. You know, you जब- can't understand scripture जब तक कि परमेश्वर ने मुझे इसके ऊपर प्रकाश नहीं दिया। और आप जानते हैं आप वचन को तब तक नहीं समझ until you सकते get हैं light on it. Go जब तक कि आपको उसमें प्रकाश ना मिले। ask some Bible college professor what it means. He won't be able to tell you because it's in the Revelation. और आप जाकर के बाइबल कॉलेज के एक अध्यापक से पूछो, वो आपको इसका अर्थ नहीं बता पाएगा क्योंकि उसके पास प्रकाशन नहीं I है। didn't have it for many years. अनेक वर्ष तक मेरे पास भी प्रकाशन नहीं था। I said, Lord, what does this mean? और मैं एक दिन मैंने परमेश्वर से पूछा इसका अर्थ क्या है? And this is what the Lord showed me. और यही बात तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। If you have read the 2000 pages of this book, और यदि आपने इस पुस्तक के 2000 पन्नों को पढ़ लिया है, the Bible, बाइबल के, and you've come to the, after all its warnings and exhortations against sin and warnings and exhortations to be holy, और आप इसकी सारी चेतावनी और उलाहना को जो पाप के विरोध में और पवित्र बनने के विषय में है, यदि इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद and at the end of reading all that, और इन सब चीजों को पढ़ने के you बाद come to the last page, और आप बाइबल के अंतिम पेज में आते हो and you still want to be filthy, और उसके बाद भी आप मलिन और अशुद्ध बने रहना चाहते हो, go ahead and be filthy. तो आप आगे जाओ और अशुद्ध बनते चले जाओ। You read all the Bible and you come to the last page and you still want to commit sin, go ahead and commit sin. और आप पूरी बाइबल को पढ़ करके अंतिम
पेज में आते हो, पृष्ठ में आते हो और उसके बाद भी आप पाप करना चाहते हो, तो आप आगे बढ़कर पाप करते रहो। In other words, God is saying, go to hell. दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि नरक में चले जाओ। It's true. ये सत्य है, Go to hell. नरक में जाओ। What shall I say? मैं क्या Shall I कहूँ? stop you from ruining your life क्या मैं आपको आपके जीवन बर्बाद करने से रोकूं? with Christian rock and क्या मैं आपके with seeking to be friendly with your peers? I said, go ahead. क्या मैं आपको रोकूं मसीही रॉक संगीत सुनने से और अपने दोस्तों के बीच में मशहूर होने से? नहीं है, आगे जाओ, मैं कहूंगा, Go ahead. आगे बढ़ो। Go and watch internet pornography as much as you like. और जितना पसंद आता है उतना आप जाकर के इंटरनेट में अश्लील चीजों को देखो, Go right ahead. Watch more of it next year. और आने वाले वर्षों में और बढ़ करके देखो, मैं कहूंगा, Go to hell. नरक में जाओ। After all that you hear in CFC, और all these years warning you, all the conferences you've come to, elder brothers, और इतने सारे चीजों को, इतने वर्षों से इतनी चेतावनियों को सीएफसी कलीसिया में और कॉन्फ्रेंस में सुनने के बाद, you heard so much about humbling yourself, be broken, you don't want to be broken, don't be broken. और आप प्राचीन लोग जिन्होंने इतना सुना है अपने आप को तोड़ने के विषय में, नम्र करने के विषय में, और यदि आप अपने आप को नहीं तोड़ना चाहते तो मत तोड़िए। फिर Go continue to think that you're somebody. और जा करके सोचते रहे कि आप कुछ माने जाते हैं। Go ahead, think that you're somebody for the rest of 2009. और आने वाले 2009 वर्ष में आप ये सोचते रहे कि आप कुछ Go माने and जाते mess up your life, go and ruin your life, go and ruin your family life. जाके अपने जीवन को बर्बाद करो, अपने पारिवारिक जीवन को बर्बाद करो। But he who has ears to hear, let him hear. परंतु जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। The greatest commandment is to love Jesus with all your heart. सबसे मुख्य आज्ञा है यीशु मसीह को अपने हृदय से, संपूर्ण हृदय से प्रेम करना, There's nothing greater than this. और उससे बड़ी और कोई आज्ञा There नहीं is है। a false teaching in the world today, और आज संसार में एक झूठी शिक्षा प्रचलित है in Christendom, मसीही जगत में, which says that faith is the greatest thing. Brother, you need faith, you need faith, you need faith, you need faith. जो लोग कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी चीज मानी जाती है मसीही जीवन में, आपको विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। And every preacher on television is saying, you got to have faith. If और टीवी का हर एक प्रचारक कहता है कि आपके पास विश्वास होना चाहिए, you're sick, it's because you don't have faith. और तुम बीमार इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, If you're not a millionaire, it's because you don't have faith. और तुम करोड़पति नहीं हो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। I wish these people would come to our poor villages in Tamil Nadu and teach that. और मैं आशा करता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये लोग भारत के गरीब गांव में जाकर के ऐसी शिक्षा को They सिखाएं। don't do that. वे ऐसा नहीं करेंगे। They go to places where already people are millionaires, वे ऐसी जगह में प्रचार करने जाते हैं जहां पहले से लोग करोड़पति होते हैं, collect money from them, and sometimes they go deceive poor people. और उनको धोखा दे करके उनसे पैसे लेते हैं, और कई बार तो गरीब लोगों को भी धोखा देते हैं, Collect the tithes from them, and और they गरीब लोगों से दशमांश लेते हैं, become millionaires themselves. और खुद ये प्रचारक लोग उसके बाद करोड़पति बन जाते हैं। I get mad, angry, just like Jesus got और मैं इन सब चीजों को देख करके क्रोध से पागल हो जाता हूँ। in the temple when he saw people making money in the name of religion. ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह लोगों को धर्म के नाम में जब उसने मंदिर में पैसे बनाते देखा तो वो क्रोध से पागल हो गया था। The money changers and the deceivers are back in the temple today, and there's nobody to drive them out. और आज मंदिर के अंदर वो फिर से रुपए के लेन देन करने वाले और धोखेबाज लोग फिर से मंदिर में घुस आए हैं, और आज कोई नहीं है जो ऐसे लोगों को मंदिर से बाहर निकाल सके, And nobody has the guts to expose them. और किसी के पास रीढ़ की हड्डी भी नहीं है कि ऐसे लोगों को उजागर करे, उनका पर्दाफाश करे। That's a tragedy in Christendom today. और आज मसीहत में यह बहुत दुखद बात है। What shall we say about these type of situations? तो ऐसी परिस्थितियों के विषय के में हम क्या कहें? This is the condition of Christendom. यह तो मसीहत की आज दशा है, And the word of God has warned us and warned us and warned us. और परमेश्वर के वचन ने हमें चेतावनी के ऊपर चेतावनी के ऊपर चेतावनी दिया है। He who is filthy, let him be filthy still. वो कह रहा है कि जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बना रहे। To love God means I keep His commandments. परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ यह है कि मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, Not in a legalistic way. और नियमवादी या रूढ़िवादी के तौर पे नहीं। The Pharisees kept their commandments, and Jesus said to the Pharisees and said to His disciples in Matthew 5, और फरीसी लोगों ने उन सारी आज्ञाओं को पालन किया, और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से मत्ती 5 अध्याय में इसके विषय में कहा। He said, if your righteousness, Matthew 5:20, does not surpass the righteousness of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. और मत्ती 5:20 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। What did he mean by that? और उसका ऐसा कहने का क्या अर्थ था?
How can your righteousness surpass the righteousness of the Pharisees? किस रीति से आपकी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ सकती है? I would say two things. मैं कहूंगा दो चीजें, Please understand this. इसे समझिए। First of all, पहली बात, their righteousness was external. उनकी जो धार्मिकता थी वो बाहरी धार्मिकता थी। They cleaned the outside of the cup. वे कटोरे को बाहर से मांजते थे। Your righteousness must surpass that in the sense that your righteousness must be internal. और आपकी धार्मिकता उनसे बढ़कर इस रीति से हो सकती है कि अर्थात आपकी धार्मिकता को अंदरूनी धार्मिकता होना है। You must not show people love on the outside, it must be from within. और आपको लोगों को बाहरी तौर पे प्रेम नहीं दिखाना है, परंतु आपका प्रेम लोगों के प्रति अंदर से आना चाहिए। Otherwise, you cannot enter the kingdom of heaven. अन्यथा आप कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। Number one, पहली बात, listen again. फिर से सुनिए। This is spoken to the disciples. Are you a disciple of Jesus? और यह बात चेलों को कही गई, यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो। It says here, यहाँ पे वो कहता है, verse 2, दूसरे वचन में, verse 1, he sat down, his disciples came to him, and he told his disciples. पहले और दूसरे वचन में कहता है यीशु मसीह वहां पे बैठ गया और उसके चेले उससे आकर के उसके पास आए और वह अपना मुंह खोल करके उन्हें उपदेश देने लगा। One of his disciples, this is what he says. यदि आप उसके चेले हैं तो आपके लिए यह संदेश है, Unless your righteousness जब तक कि तुम्हारी धार्मिकता is more than the righteousness of the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. जब तक कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं But पाओगे। you say, Lord, I said those magic words परंतु आप कहोगे कि प्रभु जी मैंने तो उन जादुई शब्दों को कहा है, 25 years ago, Lord. 25 साल पहले मैंने उन जादुई शब्दों को कहा है। Jesus come to my heart. Whatever magic words you may have said, if your righteousness does not exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. But और जादुई शब्द इस प्रकार से है कि प्रभु जी मेरे हृदय में आ जा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ भी जादुई शब्द आपने क्यों ना कहा उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आपकी जो धार्मिकता है वह शास्त्र और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके ना हो तो। you say, Lord, that's a religion of works. परंतु आप कहोगे कि प्रभु जी यह तो धर्म का काम हो जाएगा, कर्मों का धर्म बन जाएगा। Salvation is by faith, yes, but it is a faith which produces works. और आप कहोगे कि जो उद्धार है वह तो विश्वास के द्वारा होता है, परंतु मैं कहूंगा हाँ, परंतु यह ऐसा विश्वास है जिससे कर्म उत्पन्न होता है। A faith which does not produce works is a dead faith. और विश्वास जिससे कर्म उत्पन्न नहीं होता है वह एक मरा हुआ सा विश्वास है। Like a dead man who's got all his fingers and toes and eyes and everything but no breath. ठीक वैसे जैसे यहाँ पे एक मुर्दा पड़ा है जिसके आंख है, हाथ है और उसमें उंगलियां हैं, परंतु उसके अंदर श्वास नहीं है। That's what James says. और यही तो याकूब कहता है। He's got all his doctrines right. और वो व्यक्ति के सारे सिद्धांत सही हैं, No breath. परंतु उसके अंदर श्वास नहीं है। Faith without works is dead, like that. और जो कर्म बिना विश्वास है वो वैसे ही मरा हुए आदमी के समान It's a है। dead faith. It's a type of faith, an intellectual faith, which even the devil has. और यह तो मरा हुआ सा विश्वास है और यह बौद्धिक विश्वास है जो शैतान के पास भी है। No, that's not it. It's a righteousness that the proof of faith is that you love God with all your heart. और विश्वास का चिन्ह यह है कि आप यीशु मसीह से अपने संपूर्ण हृदय के साथ प्रेम करोगे। And when you say love God with all your heart, it's not something you have to grow to. I said the other day how your capacity may only be a cup. You love God with all that, it becomes a bucket. You love God with all that, you become mature and it becomes like a cup. You love God more. और मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मैंने उस दिन कहा था कि यदि आपकी क्षमता एक प्याले के समान है तो आप उस प्याले भर से आपकी क्षमता भर प्रेम करें, फिर वो आपका क्षमता बढ़ करके एक बाल्टी के समान हो जाएगा, तो आप उस क्षमता में बढ़ करके परमेश्वर से प्रेम करें पूरे रीति से, फिर उससे बड़ा हो जाएगा तो आप उस बढ़ी हुई क्षमता से संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर से प्रेम करें। जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती वैसे वैसे परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, परंतु हर समय उसे भरा रहना है। चाहे वो प्याला रहे तो भरा रहे, कप कटोरा रहे तो भरा रहे, बाल्टी रहे तो भरी रहे, टब रहे तो भरा रहे या नदी रहे तो भरी रहे। Your righteousness must exceed the righteousness of the Pharisees in two ways. One, it must be inward. और आपकी जो धार्मिकता है वो शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके होनी चाहिए। और पहली बात यह है कि आपकी जो धार्मिकता है वो अंदरूनी होनी चाहिए, More than outward. बाहरी से बढ़ करके आपकी धार्मिकता होनी चाहिए। Not that I don't murder, but यह नहीं कि मैं हत्या नहीं करता हूँ, that I don't get angry. That's why I say anger is serious. और परंतु मैं अब क्रोध नहीं करता हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि अब क्रोध ज्यादा गंभीर है।
Not that you don't lust with your, that you don't commit adultery, but you don't lust in your heart against women. और है नहीं कि आप किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करें, परंतु आप अपने मन में उसके साथ व्यभिचार ना करें। Not that you give money for God's work, but that you don't want people to know about it. So it must be hidden inward, and secondly, और दूसरी बात, it must be motivated by passionate love for Jesus Christ. और ये सारी चीजें जो है वो यीशु मसीह के प्रति जो आपका धुन वाला प्रेम है उससे प्रेरित होनी चाहिए, उसके द्वारा आगे बढ़नी चाहिए। Yeah. That's why I believe that a passionate love for Christ is the most important thing. और इसीलिए तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप यीशु मसीह के लिए धुनशाली जो प्रेम है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। But we don't talk about it. परंतु हम उसके विषय में बात नहीं करते To हैं। others, we tell the Lord, it's right to tell Jesus. हम दूसरों से इसके विषय में बात नहीं करते हैं, परंतु हम सीधा परमेश्वर से इसके विषय में बात करते हैं और उसी से बात करना सही है। I love you passionately. और उसी को कहना जरूरी है कि मैं तुझसे धुन के साथ प्रेम करता हूँ। But when other people ask me my testimony, जब दूसरे लोग मेरी गवाही मुझसे पूछते हैं, my testimony is I am a disciple whom Jesus loved. तो मैं कहता हूँ मेरी गवाही यह है कि मैं ऐसा चेला हूँ जिससे यीशु प्रेम करता है। That's it. उतना ही। But what do I tell the Lord? और मैं प्रभु से क्या कहता हूँ? Lord, thank you for your love. मैं कहता हूँ धन्यवाद हो तेरे प्रेम के लिए। And I sing to him the songs the mystics sang. और मैं उससे वही गीतों को गाता हूँ जिससे वो पागल सन्यासी जिन गीतों को गाया करते थे। Of our devotion to Christ. That's what it means to be a worshipper. और वह गीत जो भक्ति से भरपूर गीत रहते हैं, और यही तो आराधक होने का अर्थ होता है। So let the Lord hear it, not with these sentimental love ballads written by half-converted people. और होने दीजिए कि आपके गीतों को परमेश्वर सुने, ना कि जैसे कि ये जो आधे हृदय से आए हुए गायक लोग जो गाते हैं, वैसा नहीं आपका आचरण हो। But deep from your heart, Lord, I love you. What do you want me to do? परंतु आपके हृदय की गहराई से निकलने चाहिए, प्रभु जी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? Well, you know what the Lord asked that 25-year-old nurse to do 65 years ago when she was living in the comfort of the United States? Not to sing love ballads to him. Go to the jungles of India and tell them that I love them. और यीशु मसीह ने उस 25 साल की अमेरिका की नर्स से ये नहीं कहा कि तू आने वाले 65 साल तक बैठ करके इन्हीं भावनात्मक प्रेम के गीत को मेरे विषय में गा, परंतु उसने परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस संदेश को लेकर के भारत के जंगल में जा और वहां के लोगों को ये बता कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। That is a big costly love. It would have been easy to sit in the और यह बहुत ही ज्यादा महंगा प्रेम था। church every Sunday morning and sing, "Oh Lord, I love you so much." और बहुत ही आसान और सस्ता होता है आराम से कलीसिया में बैठ करके गीत गाना और प्रभु से कहना कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। And you see her today; she's such a saint. और यदि आज आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि वो कैसी एक संत महिला है। These are the people I respect. I tell you. और ऐसे ही लोग हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ। I respect them a million times more than these television preachers. और मैं टीवी प्रचारकों से करोड़ों गुना बढ़ करके ऐसे लोगों का मैं आदर सम्मान करता हूँ। Because I see Christ in them. क्योंकि मैं उनके अंदर मसीह को देखता These हूँ। other preachers, I only see the love of money. और इन It's बाकी- dollars in their eyes. और इन बाकी प्रचारकों को मैं केवल पैसे और उनकी आंखों में केवल पैसा और डॉलर ही देखता हूँ। But in these other people, I see the love of Christ in them. पर ऐसे दूसरे लोगों के अंदर मैं मसीह के प्रेम को देखता हूँ। You must follow right examples. Don't be impressed by people who just preach nicely, dress smartly, with all the money they've collected from people to. और ऐसे लोगों से आप प्रभावित ना हो जो बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहनते हैं और वो भी लोगों के से लिए हुए पैसे के द्वारा, Get all these branded dresses. और जो एकदम महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। I'm amazed that CFC people are fooled by these television preachers. और मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि सीएफसी के लोग कैसे इन टीवी प्रचारकों के द्वारा मूर्ख बनाए जाते हैं। Men or women. चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के दोनों मूर्ख बनाए जाते हैं। I'm amazed how they circulate such CDs of such people. और मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे सीएफसी के लोग ऐसे प्रचारकों की सीडी अंदर से अंदर बांटते हैं करके, And travel miles to listen to these people. और करोड़ों मतलब कई हजारों किलोमीटर जाते हैं ऐसे प्रचारकों को सुनने के लिए। I wouldn't travel 1 kilometer to listen to these people. और ऐसे प्रचारकों को सुनने के लिए मैं 1 किलोमीटर भी नहीं जाता हूँ।
I would like to sit at the feet of these godly men and women who sacrificed. मैं उसके बजाय ऐसे भक्ति में स्त्री पुरुष के चरणों में घंटों बैठना चाहूंगा जिन्होंने इतना त्याग किया है परमेश्वर That's के why I लिए। urge young people, read the biographies तभी तो मैं जवान लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप जीवनी को पढ़ो, of people like Jim Elliot. जिम एलियट की जीवनी को पढ़ो, Read the biographies of Hudson Taylor, हडसन टेलर की जीवनी को पढ़ो, C.T. Studd, सीटी स्टड की जीवनी को पढ़ो, Mary Slessor. There were और मेरी स्टेसर की जीवनी को पढ़ो, women too, Amy Carmichael. Read about एमी कारमाइकल की जीवनी को पढ़ो, these women. ऐसे स्त्री और पुरुषों की जीवनी को पढ़ो। Love ballads, repeating 3 lines 20 times. And और उनका प्रेम ऐसा नहीं था जिसमें वो एक ही 3 लाइन के गीत को 10 बार गाते थे। think they love Jesus. Their love produced obedience. उनके प्रेम का परिणाम क्या निकला कि उनके प्रेम की वजह से उन्होंने आज्ञा माना। If you love me, keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। That we have a generation growing up who think they are spiritual with zero sacrifice in their life. और आज मैं इस बात से भय खाता हूं क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी पीढ़ी उदय हो रही है जो सोचती है कि वह आत्मिक है परंतु उनके जीवन में 0% आज्ञाकारिता है। And they're in a church which doesn't even take an offering. They don't even give money. और वे एक ऐसी कलीसिया में आज है अर्थात सीएफसी कलीसिया में जहां पे दान भी नहीं लिया जाता है और इसलिए वे 1 रुपया भी दान नहीं डालते हैं दान पेटी में। Leave alone any other sacrifice. And they think they are spiritual. और वो तो भूल ही जाइए कि उनके द्वारा कोई दूसरे त्याग करने के विषय में जब वो दान ही नहीं डालते हैं तो Because their head is oozing with knowledge about the new covenant and about spirituality and legalism and everything. और उनका जो दिमाग है ना वो ज्ञान से फट फट करके बाहर निकल रहा है। उनका ज्ञान नई वाचा के विषय में और नई वाचा की कलीसिया के विषय में और ये सारे जो नई वाचा के सत्य इनका ज्ञान उनके दिमाग में भर गया In है the Bible, but it hasn't produced fruit in their life. और बाइबल का ज्ञान उनके दिमाग में तो भर गया परंतु उस ज्ञान ने उनके जीवन में एक भी फल उत्पन्न नहीं किया है। And there's conflict and strife among the elders, and conflict and strife between husband and wife. And और एक प्राचीन और दूसरे प्राचीन के बीच में झगड़ा और डाह होता है, पति और पत्नी के बीच में डाह और झगड़ा है, brothers and sisters, भाई और बहन के बीच में डाह और झगड़ा है। but they belong to CFC. परंतु वे कहते हैं कि हम सीएफसी कलीसिया के हिस्सा हैं। You think God is fooled? आपको क्या लगता है परमेश्वर मूर्ख है? You think when we stand before Jesus, He's going to ask us which church you belong to? और आपको क्या लगता है जिस दिन आप मसीह यीशु के सामने खड़े होगे तो वो आपसे पूछेगा तुम कौन सी कलीसिया में जाते थे? Is love for Jesus important? क्या यीशु मसीह के प्रति जो हमारा प्रेम है वो महत्वपूर्ण है? It is the most important commandment even today. और आज भी यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज्ञा है। Let me tell you what Paul said about those who don't love Jesus. और मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो पौलुस ने कहा उन लोगों के विषय में जो यीशु से प्रेम नहीं 1 करते हैं। Corinthians, I don't know whether you read this verse. पहला कुरंथी, मुझे नहीं पता कि आपने इस वचन को पहले कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। 16. It's a pretty पहला कुरंथी 16 अध्याय scary verse. और ये थोड़ा डराने वाला वचन है। 1 Corinthians 16 पहला कुरंथी 16 अध्याय and verse 22. और उसका 22 वचन। Paul is writing to the Corinthians who were carnal, पौलुस कुरंथियों की कलीसिया को लिख रहा है जो सांसारिक थे babies, born again, और जो आत्मिक नया जन्म पाए हुए बालकों के समान but थे like they thought, had all the gifts of the Holy Spirit. और जैसा वो सोचते थे कि उनके पास पवित्र आत्मा के सारे वरदान He हैं। tells them, और पौलुस उनसे कहता है if 1 Corinthians 16:22, if anyone does not love the Lord Jesus passionately, let him be accursed. और पहला कुरंथी 16 के 22 में कहता है यदि कोई प्रभु यीशु मसीह से धुन के साथ प्रेम ना रखे तो वह श्रापित है। Boy, what would you think if Brother Zach got up in the meeting and said, a curse on all those who don't love Jesus? और आपको क्या लगेगा यदि भाई जैक मीटिंग में खड़े होकर के बोले वे सारे लोग के ऊपर श्राप है जो यीशु मसीह से धुन के साथ प्रेम नहीं करते हैं? Zach's getting very hard. तो आप कहोगे कि भाई जैक बहुत कठोर हो रहे हैं। He's not getting hard, he's just quoting scripture. तो भाई जैक कठोर नहीं हो रहे परंतु भाई जैक केवल वचन में जो लिखा है उन्हीं बातों को आपको बता रहे हैं। You don't know it because you don't read the Bible. और आप इसलिए नहीं जानते इन वचन को क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं। Anyone sitting here जो भी व्यक्ति जो यहाँ बैठा है does not love the Lord Jesus, he or she is accursed. यदि वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता है तो वह स्त्री या पुरुष श्रापित है। Do you believe the Bible is the inspired word of God? क्या आप विश्वास करते हैं कि जो बाइबल है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया वचन है?
Or do you have favorite verses? कि क्या आपके बाइबल में पसंदीदा वचन पाए जाते हैं? You'll never be cured with favorite verses. और आपकी जो बीमारी है वो कभी भी आपके पसंदीदा वचनों से ठीक नहीं होगी। All scripture is inspired by God. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। I'm thankful that I've spent 50 years studying this book. और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि मैंने 50 वर्ष इस पुस्तक का अध्ययन करने में बिताया है। And even today, और आज भी I'll tell you, मैं आपसे कहना I feel I चाहता know हूँ, so little of it. मैं इस वचन के विषय में बहुत थोड़ा जानता हूँ। But I'm surprised how people have time for so many other things when they haven't read the Bible. और मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे लोगों के पास दुनियादारी की चीजों के लिए इतना समय होता है जब वो वचन को इतना कम जानते हैं। So much time to watch television, so much time to watch movies, उनके पास इतना समय होता है टीवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के so लिए, much time to read romantic stories, and so much time to read so many things and they don't know the Bible. और उनके पास प्रेम कथा पढ़ने के लिए और बहुत सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए उनके पास बहुत समय होता है। And which Christian books do they read? और वे कौन से मसीही पुस्तक को पढ़ते हैं? Christian books that don't drive them to the Bible, Christian love stories and Christian this and Christian that. और वे कैसी मसीही पुस्तक को पढ़ते हैं? ऐसी पुस्तक को जिन्हें बाइबल की ओर नहीं केंद्रित करती है, परंतु वे मसीही प्रेम कथाओं को पढ़ते हैं। Don't drive them to the scriptures. और ऐसी जो पुस्तकें हैं वो उन्हें बाइबल की ओर नहीं आकर्षित करती हैं। I read only those type of Christian articles and books that drive me to the scriptures. मैं केवल उन्हीं मसीही लेखकों को और लेखों को एवं पुस्तकों को पढ़ता हूँ जो मुझे सीधा वचन की ओर लेकर के जाते हैं। I know that Christian books are like listening to a message. For example, if what I am speaking now is written down, that becomes a book. और मसीही पुस्तक पढ़ना एक संदेश सुनने के समान है। यदि मैं जो भी प्रचार कर रहा हूँ यदि उसे लिख दिया जाए तो एक पुस्तक बन जाएगी। And if it's good to listen to a message, it's good to read a book, provided it drives you to the scriptures. और यदि संदेश सुनना अच्छी बात है तो वैसे पुस्तक पढ़ना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि वह पुस्तक आपको वचन की ओर लेकर के जाएगी। Not it gives you sentimental feelings of holiness and love. और ऐसा नहीं कि वह आपको पवित्रता या प्रेम के विषय में आपको भावुक करे। Let me show you another verse. मैं आपको एक और वचन दिखाऊंगा। Ephesians chapter 6. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय Ephesians chapter 6 and verse 24. और उसका 24 वचन। We all like to have grace, but whom does Paul pray? Paul is praying. और हम सब चाहते हैं कि हमारे पास अनुग्रह होवे, परंतु पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? May grace be with all who love the Lord Jesus Christ with a passionate love. और पौलुस कह रहा है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा एवं धुनशाली प्रेम करते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। Does Paul believe that loving Jesus with a passionate love is the most important thing? Yes, he does. क्या पौलुस इस बात के ऊपर विश्वास करता था कि मसीह से सच्चा प्रेम करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है? हाँ, वो विश्वास करता था। He said only such people deserve God's grace. और उसने कहा ऐसे ही लोग परमेश्वर के अनुग्रह के लायक हैं। I believe it too. मैं भी इस वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ। I endorse it 100%. और मैं उसके साथ 100% सहमत होता हूँ। But don't sing about it, don't talk about it, tell Jesus about it. परंतु आप इसके विषय में गीत ना गाएं, इसके विषय में बातचीत ना करें, परंतु यीशु को कहें इस प्रेम के विषय And में। let other people see it in your life. और होने दीजिए कि दूसरे लोग इस प्रेम को आपके जीवन में देखने पाए। And when you testify, और जब आप गवाही दें don't testify what you're doing for the Lord. Testify what the Lord has done for you. तो आप इस बात की गवाही न दें कि आपने प्रभु के लिए क्या किया, आप इस बात की गवाही दें कि परमेश्वर प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। You shall be witnesses unto me, Jesus said. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Not witnesses unto yourself. तुम ऐसा उसने नहीं कहा कि तुम अपने खुद के गवाह ठहरोगे। Be witnesses unto the Lord. मसीह के गवाह ठहरो। That's not for mature Christians, that's for baby Christians. और यह जो आज्ञा है यह परिपक्व मसीही लोग के लिए नहीं है, यह शिशु टाइप जो मसीही लोग हैं उनके लिए है। The apostles were 30 years old, 33 years old, baby Christians filled with the Holy Spirit. और जो प्रेरित थे वह 33 और 30 वर्ष के थे, लेकिन एक मसीह में बालक के समान थे, उसी समय पवित्र आत्मा से भरे गए थे। Jesus said, be a witness for me. और उनसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए गवाह ठहरो। Everywhere and talk to people, tell people about me, और उसने कहा जा करके सब जगह मेरे विषय में लोगों को बताओ, not about yourself. अपने विषय में मत बताओ। Grace be with those who love the Lord Jesus Christ with a passionate, incorruptible means, the original means undying.
और उन सब लोगों के ऊपर अनुग्रह होता रहे जो धुनशाली प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। A love that never dies. एक ऐसा प्रेम जो कभी नहीं मरता A है। love that increases just like my age has increased. एक प्रेम जो मेरी उम्र जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती वैसे वैसे वो प्रेम बढ़ता है। Once upon a time I was 1 year old. Now I'm 69. My age has increased every year. एक समय की बात है तब मैं 1 वर्ष का था, लेकिन आज मैं 69 वर्ष की आयु का हूँ। That is how our love for Jesus must increase. ठीक वैसे ही जैसे मेरी आयु बढ़ती है वैसे ही मेरे प्रेम को भी यीशु मसीह के प्रति बढ़ना है। Undying, growing, passionate devotion to Christ. May the grace of God be upon such people. What shall I say? और ना बुझने वाला प्रेम और बढ़ने वाला प्रेम जिसके पास है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होता रहेगा। Shall I say, oh, the grace of God be on all of you? No, sir, I will not say that. Grace be upon all who are sitting here who love Jesus with a passionate, undying love. और मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि आप सबके साथ परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, परंतु मैं ऐसा कहूंगा परमेश्वर का अनुग्रह केवल उन लोगों के साथ होता रहे जो धुनशाली प्रेम से धुन के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हैं। The rest, और बाकी लोगों के विषय में क्या, तो you can do what you like. आप जो चाहे वो कर सकते हैं। Maybe go and listen to Christian rock और हो सकता है शायद आप जाकर के मसीही रॉक को सुने or sing these 3 lines 45 times. या 45 बार इन 3 लाइन को गाएं And fool yourself. और अपने आप को धोखा दें। I'm telling you the truth. मैं आपको सच And बता रहा the हूँ। scripture says, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बाइबल में लिखा है। James chapter 1. याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय। James chapter 1. याकूब Let's look की at another apostle. याकूब की पत्री पहला अध्याय और एक और प्रेरित के विषय में देखेंगे। He was the one who lived with Jesus यह ऐसा व्यक्ति था जो यीशु के साथ रहता था for 29 years at home. और यीशु के साथ उसके घर में ये व्यक्ति 29 साल तक रहा था। But he doesn't call himself a brother of Jesus. He calls himself a slave of Jesus Christ. और वो कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं कहा कि वो यीशु मसीह का छोटा भाई है, परंतु उसने हमेशा यह कहा कि वो यीशु मसीह का बंधुआ मजदूर या सेवक है। James 1 verse 12. याकूब 1 का Blessed 12। is the man who perseveres under trial. That means who overcomes sin. Because once धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, अर्थात वह जो पाप के ऊपर जयवंत होता he has है, overcome and is being approved, he will receive the crown of life क्योंकि जब वह जयवंत होता है और खरा निकलता है तो वह जीवन का मुकुट पाएगा, which the Lord has promised to whom? जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने किससे की है? To everybody? हर किसी से की है क्या? No. नहीं, To those who love him with a devotion, केवल उनसे की है जो उसे भक्ति के साथ प्रेम करते हैं, who love him with all their hearts. जो अपने संपूर्ण हृदय से उससे You प्रेम know that करते the crown हैं। of life is not for everybody? Why didn't he say the crown of life is the Lord has promised to all believers? और आपको पता है उसने यह क्यों नहीं कहा कि यह जो जीवन का मुकुट है वो हर किसी के लिए है? No. It's नहीं। for those who love him. या केवल उनके लिए है जो उससे प्रेम करते हैं। And you know, I have a question when I read this verse. Do you find the same question? To whom is the Lord going to give the crown of life? Answer me by reading just that one verse. और इस एक वचन को पढ़ करके आप मुझे बताएं, है ना, कि कौन वह व्यक्ति है जिसे परमेश्वर जीवन का मुकुट देने वाला है? Is it going to be for those who love him? Or is it going to be for those who persevere under trial and overcome and are approved? Tell me. और यह मुकुट किसको दिया जाएगा? जो परीक्षा में स्थिर रह करके खरा निकलता है या जो प्रभु से प्रेम रखता है? Let me read it. Blessed is the man who perseveres under trial. Once he has been approved, he will receive the crown of life. धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। Who's getting it? किसको मिल रहा है? Did I confuse you? क्या मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है? I hope I stirred you to read the scriptures more carefully. और मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको आज थोड़ा सा घुमाया है ताकि आप और गंभीरता से वचन का ध्यान करें। Let me say it again. मैं फिर से पढ़ता हूं। Blessed is the man who perseveres under trial, temptation, and once he's been approved, that means God approves, yes, you overcame it. धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, प्रलोभन में स्थिर रहता है, और आगे कहता है क्योंकि वह खरा निकलता है, He will receive the crown of life. वह जीवन का मुकुट पाएगा। Who's the one who gets the crown of life? किसे जीवन का मुकुट मिल रहा है? The one who overcomes in temptation. वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है या उसके ऊपर जयवंत होता है। Now let me read it again. मैं इसे फिर से The crown पढ़ूंगा। of life is the Lord has promised to those who love him.
और जीवन के मुकुट की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। Who's going to get the crown of life? किसे जीवन का मुकुट मिलेगा? So, by simple deduction, A equals B and B equals C. What did algebra teach you? Therefore, और जैसे साधारण गणित सिखाता है A बराबर B और B बराबर C, तो आप अलजेब्रा के माध्यम से गणित में क्या सीखते हैं? A equals C. A बराबर C। Okay? ठीक है? Now let me teach you. अब मैं आपको सिखाता This हूँ। teaches us यह हमें ऐसा सिखाता है that those who love Him will persevere under trial. कि जो उससे प्रेम रखेंगे वो परीक्षा में स्थिर रहेंगे। This is we're talking about the same people in two different ways. क्योंकि हम एक ही प्रकार के लोगों के दो अलग अलग हिस्से में बात कर रहे हैं। You say this is a man, this is a male. और वैसे ही आप कह रहे हो कि ये आदमी है और ये पुरुष है, दोनों एक ही है, Same thing. एक ही चीज है। This is a man who loves Jesus passionately. He overcomes in trial. Same thing. यहाँ पे एक मनुष्य है जो यीशु मसीह सो धुन के साथ प्रेम करता है, और वही यहाँ पे मनुष्य है जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। एक ही बात है। Don't fool yourself that you love the Lord if you don't persevere under trial. That's what I'm trying to say. और आप अपने आप को धोखा ना दे इस बात को कहते हुए कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परीक्षा के ऊपर जवंत नहीं हो रहे हैं तो। If you don't persevere under trial, you don't humble yourself, and God calls you to humble yourself, you don't overcome temptation as it comes to you, you do not love the Lord. That's it. That's the last word on it. और यदि आप जैसा परमेश्वर चाहता है, यदि आप परीक्षा में स्थिर रह के खरे नहीं निकल रहे हैं तो आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं। Let me show you another verse. It's amazing, you read scripture carefully and you get light. और ये बहुत ही अद्भुत बात है, जब आप वचन को गंभीरता से पढ़ते हैं तभी आपको उसमें प्रकाश मिलता है। Do is read slowly. One of the things I've been encouraging people in different parts of India now is read scripture slowly. और एक ही बात के लिए जिसके मैं पूरे भारत देश में लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, वह यह है कि आप धीरे धीरे वचन का अध्ययन करो। Don't try to go through the Bible, let the Bible go through you. और आप बाइबिल से गुजरने का प्रयास न करें, परंतु ऐसा होने दे कि बाइबिल आपसे होकर के गुजर जाए। I'm not so interested in going through the Bible in 1 year. और मेरी दिलचस्पी यह नहीं है कि मैं एक वर्ष में पूरी बाइबिल से होकर के गुजर जाऊं। Because I'll tell you honestly, when I read the Bible sometimes I get stuck in one verse for 1 week. और परंतु मैं आपको अपने ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, कई बार जब मैं बाइबिल पढ़ता हूँ तो मैं एक ही वचन में एक हफ्ते तक अटका रहता हूँ। One verse. How can I finish the Bible in 1 year? तो यदि मैं एक वचन में एक हफ्ते तक अटका हुआ हूँ तो मैं एक साल में कैसे बाइबिल को खत्म कर पाऊंगा? Because I get a verse and I say, boy, I need to really digest that. और कई बार मुझे एक वचन मिलता है और मैं उसे बोलता हूँ कि नहीं, मुझे सचमुच में इस वचन को पचाने की जरूरत है। Otherwise you'll be like these children who swallow food. You put meat in them up, no chewing, nothing. अन्यथा आप ऐसे बच्चों के समान होंगे जिनके मुंह में मटन का टुकड़ा डाला जाता है और वैसे बिना चबाए निगल जाते हैं, और उनके मुंह में फिर कुछ डालो और उसे निगल जाते हैं, और ठीक वैसे ही वो बाहर आ जाता है। We teach our children, chew your food, chew your food. You live long if you chew your food. और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम अपने खाने को चबा करके खाओ। यदि तुम खाने को चबा करके खाओगे तो तुम दीर्घायु होगे। Now the same thing I say in scripture, chew it. और यही चीज मैं वचन के विषय में भी कहता हूँ, चबाओ उसे। Like milk which you can swallow. और दूध के समान नहीं जिसे आप गटक सकते हैं। There's certain things you can swallow. कई सारी चीजें हैं जिसे आप सीधा गटक सकते हो, बच्चों के समान। Chew it. परंतु वचन में कई सारी ऐसी बातें जिसे आपको बैठ के चबाना है। Then you become strong. Chapter 2. तभी आप मजबूत बनेंगे। James chapter 2. याकूब 2 अध्याय Verse 5. उसका 5 वचन। My beloved brothers, did not God choose the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him? और हे मेरे भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। Now you know the answer. अब To आप whom is God promising the kingdom? और अब आपको उत्तर मिल गया कि परमेश्वर किसको प्रतिज्ञा कर रहा है राज्य के लिए। To those who love Him and किसकी प्रतिज्ञा कर रहा है? जो उससे प्रेम करते हैं, और which is the same as those who are rich in faith. जो विश्वास में धनी हैं। You know, it's the same thing. एक ही बात है ये। If you love Him, you will have strong confidence in God. You know, the proof of my faith in God is, that I say, Lord, the proof of my love for God is that I say I keep His commandment. The proof of my faith in God is, Lord, I believe
that every commandment you've given me is for my good. और परमेश्वर के प्रति मेरे प्रेम का चिन्ह यह है कि मैं उसकी हर एक आज्ञाओं को मानूंगा, और परमेश्वर के प्रति मेरे विश्वास का चिन्ह यह है कि मैं उसकी हर एक आज्ञाओं के ऊपर विश्वास करूंगा, यह विश्वास करूंगा कि उसकी हर एक आज्ञा मेरे भलाई के लिए है। Okay, let me show you another verse. मैं आपको एक और वचन दिखाऊंगा। Well-known verse. Romans 8:28. रोमियो 8:28। We know that God causes everything to work together for good for whom? For those who love Him. हर एक बातें मिलकर के भलाई के लिए, भलाई को उत्पन्न करती किसके लिए? केवल उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। You see how important it is to love God with all our heart. और अब आप देख पा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना। Everything that happens in your life will work for your good. और हर एक चीजें जो आपके जीवन में घटित होती है वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। I want to live there. मैं वहां पे रहना चाहता हूँ। The safest place in all the world, where is it now? और संसार में सबसे सुरक्षित जगह आज कहाँ पे है? It's not the United States, it's not Europe, it's not these यह अमेरिका नहीं है, यूरोप देश नहीं है, plains, it's not the Arab countries, और यह अरब कंट्री नहीं है, it's not India, भारत भी नहीं है, and certainly not the five-star hotels. और 5 सितारा होटल तो बिल्कुल भी नहीं है। That's not the safest place today. और आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान नहीं है। The safest place is in the shadow of the Most High. और जो सबसे सुरक्षित स्थान है वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है। In the secret place of the Most High, the shadow of the Almighty. और उस परम प्रधान के छाए हुए और गुप्त स्थान में सबसे सुरक्षित जगह है। It is in the center of the will of God. अर्थात परमेश्वर की योजना के बीचों बीच। And if you're in the center of the will of God, you can live in Afghanistan or Iraq and you're quite safe. और यदि आप परमेश्वर की इच्छा के मध्य में रहेंगे, अर्थात उसकी इच्छा के बीचों बीच में रहेंगे, तो चाहे आप अफगानिस्तान में रहें, आप ईरान देश में रहें, आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। But if you're not in the center of the will of God, you're not safe. You can be killed crossing the road. परंतु यदि आप परमेश्वर की इच्छा के मध्य में नहीं रहेंगे तो आप वैसे ही होंगे जो एकदम सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ है। In a country you think you're safe. और भले ही आप ऐसे देश में क्यों न रहे जहां आपको लगे कि सुरक्षित देश है। Seek with a terrific passion in your life. और बहुत ही ज्यादा तीव्र उमंग के साथ आप खोजें। Lord, I want to be in the center of your will. और कहे कि प्रभु जी मैं तेरी इच्छा के बीचों बीच अर्थात मध्य में रहना चाहता हूँ। Your children. अपने बच्चों को यह सिखाएं To seek the will of God for their life. कि अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा की खोज करें। Lord, I want to live in the center of your will for my life. और कहिए कि प्रभु जी मैं अपने जीवन में, मैं तेरी इच्छा के मध्य में अपने जीवन भर रहना चाहता हूँ। All my days. अपने जीवन के सारे दिनों में। Love is the greatest. प्रेम सबसे बड़ा है। And how shall we love Jesus more? और हम किस रीति से यीशु से सबसे ज्यादा प्रेम करें? 2 तरीकों से। One is पहला है by meditating on how much he loved me. इस बात के ऊपर मनन करने से कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया। John says in 1 John chapter 4. पहला यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय में, Because he first loved हम us. उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। This is how we love him. We love him because he first loved us. और इसी रीति से हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। 1 John 4 verse 19. पहला यूहन्ना 4 का 19। That's how I love him. और इसी रीति से मैं उससे प्रेम करता हूँ। If you don't meditate on how much Jesus loved you, और यदि आप इस बात के ऊपर मनन नहीं करेंगे कि कितना ज्यादा यीशु ने आपसे प्रेम किया है, you will not love him. You will not turn from sin. तो आप उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी पाप से नहीं मुड़ पाएंगे। One of my favorite hymns which I sing by myself is this. और एक मेरा सबसे बड़ा जो भजन है वो ये पसंदीदा वह है, Ever when tempted, Lord, make me see beneath the olive's moon-pierced shade, my God alone. It's talking about Calvary, outstretched and bruised and bleeding on the earth that He made, and make me feel it was my sin, as though no other sins were there. That was to Him who bears the world a load that He could scarcely bear. That was to Him who bears the world, my sin,
a load that he could scarcely bear, that he had to cry, my God, why have you forsaken me? और इसके वजह से उसे रोना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। I meditated on that for 50 years. और 50 वर्षों तक मैंने इस वचन के ऊपर मनन किया I है। love Jesus. It's made me take up the cross and humble myself in different circumstances. और इसने मेरी सहायता किया कि मैं अपने आप को दीन और नम्र करूं और अपना क्रूस उठाऊं। And to do anything the body of Christ can be built. और मसीह के देह में कुछ भी कार्य को करूं जिसे मैं कर सकता हूं। Lord, I'm willing to go down. प्रभु जी मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूं। Nobody. मैं कुछ नहीं हूं। Let the body of Christ be built. और होने दे कि मसीह की देह का निर्माण हो Fellowship be built. और संगति बढ़ने पाए। Go that way. Your life will be very happy. I'll tell you, my life is so happy, and I wonder if I've met a happier man than me in the world. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप इस मार्ग से जाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा होगा। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने से ज्यादा किसी खुश और व्यक्ति से इस संसार में कभी मुलाकात की होगी। Meet one. Let me know. I'd like to meet him. यदि कोई मुझसे भी ज्यादा खुश व्यक्ति होगा इस संसार में तो मुझे बताइए, मैं उससे मिलना My चाहूंगा। life is supremely happy under all types of circumstances. हर एक परिस्थितियों में मेरा जीवन पूरी रीति से खुशियों से भरा रहता There's है। no difference. When things go right, things go wrong, it doesn't make a difference. और इससे कोई अंतर मेरे जीवन में उत्पन्न नहीं होता यदि चीजें अच्छी घटित हो या बुरी घटित हो, Because I've seen Jesus on the cross. क्योंकि मैंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देख लिया है। I've seen the intensity of his love for me. I'm a disciple whom Jesus loves. और मैंने उसके प्रेम की जो भयानकता है उसे देखा है। और मैं वो कहता हूँ कि मैं वो चेला हूँ जिससे यीशु प्रेम करता है। And I love him because he first loved me. और मैं उससे प्रेम इसलिए करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया है। That's number one. ये पहली बात है। The second thing that makes me love Jesus fervently. दूसरी बात जो मुझे यीशु से सबसे ज्यादा प्रेम कराती वह है Luke's Gospel and chapter 7. I'm saying this लूका 7 अध्याय, not to tell you how much I love Jesus, but to encourage you to love Jesus by doing the same thing yourself. Meditate on Jesus' love for you, number one. और मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, यानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि मैं आपको बताऊं कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूँ, परंतु मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए बता रहा हूँ कि आप भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम करो। पहली बात यह है, इस बात के ऊपर आप मनन करें कि यीशु ने कितना आपसे प्रेम किया। Number two. दूसरी बात, Luke chapter 7, verse 40 onwards, Jesus told a story about two debtors. लूका 7 के 40 के आगे से यीशु मसीह ने दो कर्जदारों के विषय में बात किया। A moneylender, verse 41, had two debtors. एक देनदार के दो कर्जदार थे, One owed him 500 denarii and the other 50. एक 500 दिनार का और दूसरा 50 दिनार का, Both were unable to repay and he और दोनों ने नहीं दे पाया gave both of them. और उसने दोनों के कर्ज को क्षमा किया। Which of them will love him more? और कौन व्यक्ति उससे ज्यादा बढ़कर के प्रेम करेगा? You know, the creditor here is God. और आपको पता है यहाँ पे जो कर्ज देने वाला है वो परमेश्वर है। Every sin I commit is a debt to him. जितना जो भी पाप मैं करता हूँ वो परमेश्वर के ऊपर से लिया हुआ एक कर्ज हो जाता है। And I've committed millions of sins in my life and I'm tremendously in debt to God. और मैंने करोड़ों पाप किए अपने जीवन में, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा कर्जदार हो गया हूँ। Maybe another fellow has not committed so many sins. और हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति ने इतना पाप नहीं किया He's होगा not so much in debt. और वो इतने ज्यादा कर्ज में नहीं पड़ा होगा। One owed him million sins, another owed him maybe 100,000 sins. और एक जो है वो 1 करोड़ पाप का उसका कर्जदार है और दूसरा जो है वो 1000 पाप का कर्जदार है। Who will love him more? कौन उससे बढ़कर के प्रेम करेगा? The one who is being forgiven more. वह जिसका Simon said, even the Pharisee knew the answer. वह जिसका ज्यादा क्षमा किया गया है। Jesus said to Simon the Pharisee, do you see this woman? She is talking about that sinful woman, the prostitute. और यीशु मसीह ने उस शैमोन से कहा कि हाँ तू इस स्त्री को देख रहा है, इस वेश्या स्त्री को, Who took all her life savings and bought a perfume. और जिसे अपनी जीविका को पूरा खर्च करके एक परफ्यूम खरीदा है And poured it at Jesus' feet because she's been forgiven so much. और उसे यीशु मसीह के चरणों में इसलिए तोड़ करके उंडेल दे क्योंकि उसका बहुत पाप क्षमा किया गया है। We were not prostitutes. We were not forgiven so much. और हम वेश्या नहीं, इसलिए हमारा उतना क्षमा नहीं किया गया है। And Simon certainly was not a prostitute. और जो सिमोन था वो तो निश्चित तौर पे कोई वेश्या नहीं था। And Jesus said, that's why you don't love me so much as this woman. You और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू इस स्त्री से बढ़कर के मुझसे प्रेम नहीं करता है, criticize her तभी तो तू इसे नीचा कर रहा है। because she's not dressed properly. तू इसे इसलिए नीचा कर रहा है क्योंकि इसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। You criticize her for bringing an offering from her earnings as a prostitute. But I see the heart behind it. और तू इसे इसलिए कोस रहा है क्योंकि इसने अपनी वेश्यावृत्ति से कमाए हुए पैसों से मेरे लिए एक महंगा इत्र लाया है और उसे मेरे चरणों में उंडेल दिया है। Simon, I know there's a law in Deuteronomy which says that the earnings of a prostitute must never be given as an offering to God. I know that verse, Simon. और साइमन, मुझे पता है कि लय व्यवस्था में एक आज्ञा है कि वेश्यावृत्ति से कमाए हुए पैसे को कभी भी परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं करना है।
but I see her heart. लेकिन मैं उसके दिल को देख रहा हूँ, I go beyond that. मैं उससे आगे बढ़ करके ज्यादा देखता हूँ। You guys are all legalists. You want to kill the woman caught in adultery. और तुम सब तो नियमवादी परंपरावादी लोग हो, तुम उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई है पत्थरवाह करके मारना चाहते I know हो। there's a law which says such women should be killed, but I see God's heart. और व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मारना है, लेकिन मैं परमेश्वर के हृदय को देख रहा हूँ। She's to be forgiven. This woman has been forgiven so much. You didn't even give me water for my feet, and she's been anointing my feet with oil. और तूने तो मुझे पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, परंतु इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोया है। She loved much. क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्रेम किया। Why do you think Mary Magdalene was the one who waited in the tomb? I read that story of this resurrection morning. Peter and John came and looked and saw the tomb was empty. It was 4 o'clock in the morning. He said, we haven't slept properly yet. I go back to sleep. Well, 4 o'clock in the morning, if you get up, you naturally want to go back to sleep again. Mary was awake before 4 o'clock in the morning. She went there at 3 o'clock. और मैंने कई बार उस पुनरुत्थान की सुबह की घटना के विषय में सोचा है, और पतरस और जो यूहन्ना थे वो सुबह 4 बजे वहां पे कब्र में गए और उनको कुछ नहीं मिला, और वो वहां से वापस आकर के सो गए, क्योंकि बोले हम थक गए, क्योंकि हम सुबह 4 बजे से उठ के कब्र में गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरियम मगदलनी जो थी वो सुबह 3 बजे से उठ गई थी कब्र में जाने के लिए, But she didn't go back to bed. परंतु वो 3 बजे उठने के बाद वो सोने नहीं गई थी। She said, I can't go back to bed. और उसने कहा कि मैं वापस नहीं जा सकती हूँ सोने के लिए। I want to know where my Savior is. और वो कह रही थी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे उद्धारकर्ता को कहाँ रखा गया है। Do you have a passion like that? क्या आपके हृदय में ऐसी लालसा और उमंग है? When you've lost Jesus for a while because you're occupied with the world, you go और back. जब एक क्षण के लिए आप यीशु मसीह को अपने जीवन से खो देते क्योंकि आप संसारिकता में लिप्त हो गए हैं, I can say, I've lost my Lord. Where is he? तो क्या आप ऐसा कहते हैं कि मैंने अपने प्रभु को खो दिया और वो कहाँ है? क्या आप उसे ढूंढते हैं? She couldn't go back to bed. और वो मरियम मगदलनी कभी वापस सोने नहीं जा पाई जब उसने प्रभु को वहां नहीं पाया। तो Why? Because she had been forgiven much. क्यों? क्योंकि उसका बहुत पाप क्षमा किया गया था। 7 demons had been cast out of her. उसके जीवन उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। She wasn't forgiven little like Peter and John and all who had lived a decent life. She was a sinner. और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना के समान उसका जीवन साधारण जीवन नहीं था, परंतु उसका जीवन पाप में जीवन था, A filthy sinner. और बहुत ही दुष्टता से भरी हुई पापनी स्त्री थी वो। And Jesus had forgiven much. और यीशु ने उसके बहुत पापों को क्षमा किया था, Loved much. इसलिए उसने बहुत प्रेम किया, And so God gave her the privilege और इसलिए परमेश्वर ने उसे सौभाग्य दिया to be the first human being कि सबसे पहले इंसान होने का, to see the resurrected Jesus. पुनरुत्थित यीशु मसीह को Those देखने who का। are great sinners and who don't despise others. और जो लोग इस बात को जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि वो बहुत बड़े पापी और दूसरों को तुच्छ नहीं जानते हैं, Who esteem others as better than them. और जो दूसरों को अपने से बढ़ करके महत्व देते हैं, Will see Jesus. They may not become elders and have great honor and position, but वे they यीशु को देखेंगे और वे प्राचीन बन करके उन्हें बड़ा पद नहीं मिलेगा, see Jesus. परंतु वे यीशु को देखने पाएंगे And they'll be great in the kingdom of God. और वे परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। Kingdom which God has promised to those who love Him. और ऐसा राज्य जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उन लोगों से की है जो उससे प्रेम करते हैं। And such people will find it very easy to love others because they've been forgiven so much. और ऐसे लोग दूसरे लोगों से बड़े आसानी से प्रेम कर पाते हैं क्योंकि उनका बहुत पाप क्षमा किया गया है। Such people will find it easy to forgive others because they've been forgiven so much. और ऐसे लोग दूसरों को आसानी से क्षमा कर पाते हैं क्योंकि उनका बहुत अपराध क्षमा किया गया है। This is the whole secret of the Christian life. और यही तो मसीही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। Don't let your past sins bring condemnation upon you because the blood of Jesus has cleansed them. But always remember that और ऐसा ना होने दो कि आपके जो पुराने पाप हैं आपके ऊपर दोष भावना को लेकर के है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने लहू के माध्यम से धो दिया, परंतु आप इस बात को भी स्मरण the रखें। sins you committed. Do you know that I have zero condemnation about my past life? I stand before God today as one who has never sinned because the blood of Christ has justified me. But having said that, और परंतु मैं आपसे ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में मैं यहाँ पे खड़े होकर परमेश्वर के सामने कह सकता हूँ कि मेरे को किसी भी पाप के लिए मेरे अंदर कोई दोष भावना नहीं, क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूँ। और ऐसा कहने के बावजूद मैं ये कहता हूँ, I'll tell you honestly my testimony. मैं ईमानदारी से अपनी गवाही आपको बताता I हूँ, frequently remember मैं अनेक बार और जल्दी जल्दी स्मरण the करता हूँ, sins I committed as far back as my childhood. और जहां तक मुझे याद आता है मैं अपने बचपन के पाप को याद करता I हूँ। can remember. मुझे जहां तक याद आता I है remember it frequently और मैं बहुत जल्दी जल्दी याद करता हूँ अपने पुराने पापों को, because that's how I love my Lord. क्योंकि इसी रीति से मैं अपने परमेश्वर से प्रेम कर पाता हूँ।
I said, Lord, you forgave me मैं कहता हूँ प्रभु जी तूने मुझे क्षमा किया है, so much. इतना ज्यादा क्षमा किया है, You forgave me so much. How can I live a shallow, half-hearted life for you? और तूने मुझे इतना क्षमा किया तो मैं कैसे तेरे लिए एक आधा हृदय से आया हुआ जीवन और उथला जीवन जी सकता I हूँ। have no time for that. मेरे पास Life is उसके so लिए समय short. नहीं है, क्योंकि जीवन बहुत क्षणिक है। About 15 years ago, I was driving my moped down the level crossing here, and the guy lowered the level crossing and hit me straight on the chest, and I fell unconscious on the railway line, almost died. और आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैं यहाँ पे रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा था तो उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया और मैं स्कूटर से जा रहा था और उसने फाटक का जो सरिया था उसे नीचे गिरा दिया और फाटक का सरिया सीधा आ करके मेरे छाती में लगा और मैं बीचों बीच रेल की पटरी के ऊपर बेहोश होकर के गिर गया और पूरा मरा हुआ सा हो गया था। 15 years ago. 13 साल पहले की बात है। The Lord saved my life. और आपको पता है परमेश्वर ने उस दिन मेरे जीवन को बचाया था। And this is what I said to the Lord at that time. I said, Lord, और यह बात को मैंने उस दिन प्रभु से कहा था और मैंने कहा था, प्रभु जी I have not finished saying thank you to you for dying for me on the cross. और मैंने कहा था कि मैंने अभी तक आपको धन्यवाद देना खत्म नहीं किया है उसके लिए जिसके लिए आप क्रूस पे मेरे लिए मरे हैं। Please give me a few more years. और कृपा करके मुझे कुछ साल और दे दीजिए Just to say thank you to you, that's all. I don't want कि मैं तेरे को और धन्यवाद दे सकूं आने वाले वर्षों में, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। any reward. I don't want. And that's what I sought to do the last 15 years. और बीते 15 सालों से मैं केवल इसी चीज की खोज कर रहा हूं। Dear brothers, you owe so much to Jesus. और भाइयों बहनों, आप इस बात को जाने कि आप कितना ज्यादा यीशु मसीह के कर्जदार You may हैं। say, well, I'm not such a great sinner. और आप कह सकते हो कि मैं इतना बड़ा That's पापी because नहीं you हूं, haven't seen how serious even pride is. क्योंकि यह इसलिए क्योंकि आपने इसकी गंभीरता को नहीं देखा कि घमंड कितना भयंकर होता है Hypocrisy. You और know, पाखंड कितना गंभीर है। pride and hypocrisy are worse than adultery and murder. क्या आपको पता है जो घमंड है और जो पाखंड है, कपटीपन है, वो व्यभिचार और हत्या करने से ज्यादा गंभीर पाप है। You don't see the seriousness of it. You think like the worldly person. I haven't killed anybody. I haven't committed adultery. So what? You've had pride. You've had hypocrisy. You've had selfishness. Those are the worst sins in God's eyes. और आप संसारिक व्यक्ति की तरह कहते हो कि हाँ मैंने हत्या नहीं किया है, मैंने व्यभिचार नहीं किया, परंतु आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर कपट है और यह उनसे भी बदतर पाप है। The fellows who commit murder and adultery are much better. और वे लोग जिन्होंने हत्या की और व्यभिचार किया वो आपसे कहीं बेहतर लोग हैं। So we recognize we are sinners when we see the gravity of sin in God's eyes. और हम पापी है करके हमें तभी मालूम चलता है जब हम पाप के भार को परमेश्वर की नजरों से देखते हैं। Let's go forth determined to love Jesus passionately with all of our heart. और हम आगे बढ़े और गंभीरता से आगे बढ़ते हुए अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम So करें that Jesus will see that in our life. और कि यीशु मसीह इन बातों को हमारे जीवन में देखने Let's पाए। spend time in worshiping Him, saying to Him, Lord, whom have I in heaven but you? There's no one on earth that I desire beside you. और हम समय निकाले उसके चरणों में बैठ करके इस बात को कहने और मनन करने के लिए कि स्वर्ग में मेरा और कौन है तेरे छोड़ करके, पृथ्वी में मेरा और कौन है तेरे सिवाय। Don't sing it to people, sing it to the Lord. और लोगों के सामने ऐसे गीतों को ना गाए, परंतु परमेश्वर के सामने ऐसे गीतों को गाएं। Like a bride whispers her love to her bridegroom in his ear. ठीक वैसे ही जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे को प्रेम के शब्द उसके कानों में धीरे धीरे बोलती है She doesn't talk about it to others. और दूसरों से उसके विषय में बातचीत नहीं करती है। Live before Jesus like that. और इस रीति से आप यीशु मसीह के सामने जीवन जिए। I believe we will have different types of churches in India. और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की कलीसियां If we have होंगी। more people like that. And you will be changed. यदि हमारे पास ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो, And your life will transform your children. और यदि आपका जीवन परिवर्तित होगा तो आपका जीवन आपकी कलीसिया को परिवर्तित करेगा। I want to go that way. और मैं उस मार्ग में आगे जाना चाहता हूँ। Let's walk together, और आइए हम एक साथ आगे चलें, you and I, आप और मैं, and build the church of Jesus Christ in this land. और इस देश में यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण करें। Amen. आमीन। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we are a needy people. हम जरूरतमंद लोग हैं। The more we hear your word and the more we see your glory. जितना ज्यादा हम तेरे वचन को पढ़ते हैं उतना ज्यादा हम तेरी महिमा को देखते हैं।
We see our need, we don't see anybody else's. हम अपनी जरूरत को देखते हैं, हम किसी दूसरे की आवश्यकता जरूरत को नहीं देखते I हैं। see my own need, Lord, more than anybody else's. और प्रभु जी होने दे कि मैं अपनी जरूरत को दूसरे की जरूरत से बढ़ करके देखने वाला हो सकूं। I'm far, far from what you want me to be, and I believe most of us feel like that right now. But we have hope परंतु हमारे पास एक आशा है, as we trust you, जैसे हम तुझ पर विश्वास करते हैं that you will work in our hearts, कि आप हमारे हृदय में काम करेंगे, in us, हमारे the भीतर, desire to will and to do with your good pleasure, the ability and the desire to love you with all of our hearts, कि आप हमारे हृदय में वो लालसा और उमंग देंगे कि हम आपको संपूर्ण हृदय से प्रेम करने वाले हो सकें, and from that love और उस प्रेम से to serve you, आपकी सेवा करने वाले हो to सके, sacrifice, to deny ourselves, to be merciful to others, कि त्याग करने वाले हो सके, अपने आत्म का खंडन करने वाले हो सके और दूसरों के प्रति दयावंत बन सके, to forgive others, और to serve others, to दूसरों को क्षमा कर सके, दूसरों की सेवा कर do सके good to others, और दूसरों के साथ भलाई कर सके, to walk in lowliness, never to esteem ourselves as superior to anyone, और एकांत में चलने वाले हो सके, कभी भी अपने आप को दूसरे से बड़ा ना समझने वाले होने पाए हम, to serve them, to love them, और हम उनकी सेवा कर सके, उनसे प्रेम करने to वाले हो deny सके, ourselves, ताकि हम अपने आप का इनकार करने वाले to हो walk सके in purity. और पवित्रता में To see चलने that वाले, it is the Lord of our sin that crushed you. और इस बात को हम देखने वाले हो सके कि हमारे पाप के बोझ नहीं आपको क्रूस के ऊपर कुचल दिया था। Help us each one, Lord, we pray. हम में से हर एक की सहायता कर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।